Assalamu alaikum to all the participants and the viewers who are watching us live on our Facebook page, Rehan AI Teachers Institute, with myself, our training valley, working as Vice President Secretary Rehan School Online Academy and Secretary at Rehan AI Teachers Institute, Teacher Training Bootcamp for 2 months. Today, a new week has been started. I hope and I believe you guys spent your weekend with your family and friends and yourself very well. Tonight is 28th July 2025. The time is 7 minutes past 9 p.m. UTC plus 5 according to Pakistan Standard Time. Thank you so very much everyone for joining the class and sparing some time for your grooming, your growth and your learning. So let's start our class with meditation and we'll proceed with it. Ji Naseemullah bhai, play the meditation video. Guided Meditation by Lavender. I'm happy you made the choice to meditate and start your day with positive intention. Let's get into a comfortable seated position. Close your eyes and rest your hands on your knees with your palms facing up. Take 3 deep breaths with an open mouth exhale. Now, take a moment for gratitude. Focus on what you have to be grateful for today. Take another deep breath in and a deep breath out. Breathe in and imagine positive energy coming into your body through the top of your head. As you breathe out, imagine that positive energy flowing through your body all the way down your limbs and pushing old, stagnant energy out through the tips of your toes. So breathe in positive, loving energy. And breathe out. Let all that positive energy flow through you, washing away any negative thoughts, energy, and emotions that aren't serving you. Continue this visualization for a few more deep breaths. With this, you're giving yourself an energetic cleanse to begin your day with high vibrational energy. Being intentional with your energy and learning to cultivate it is a valuable skill that can change the trajectory of your day and, in time, the trajectory of your life. Today is a new day, a beautiful day, with new possibilities and opportunities coming your way. Yesterday is in the past, so you can let go of that now. Let go of anything from the past that weighs you down. You don't need it anymore. Each day is a chance to start anew. So start today with a fresh mind and a light heart. You have the power to shape your day in any way you desire. All it takes is intention in every little choice you make. So, use today to create a brighter future for yourself. I'll be sharing some positive affirmations for your day, so feel free to repeat along with me in your mind. I am worthy. I am enough. I love myself. I trust myself. I believe in myself and I'm fully confident in myself. I'm exactly where I'm meant to be. Everything is happening for my greatest good. I am powerful. I am protected. I am guided. I am strong. I am brave. I am resilient. I choose love over fear.
I am fully deserving of success and love. My life is abundant and full of joy. I am an artist of life. I have the power to create my dream life. Now take 3 final breaths with an open mouth exhale. You are now ready to begin your day as your highest self. Blink open your eyes and see the world around you with a fresh perspective. Have a beautiful day, sending you so much love. Namaste. Thank you so very much, everyone, for practicing this validation video. So let's talk about our weekend's task. If anyone find any kind of difficulty, please let me know. अगर किसी का कोई challenge है, कोई problem रहा, तो please वो share कर लें one by one. Then let's move towards today's task. Yes. जी मिसाला. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम. मैम मैंने मेरा थोड़ा-सा पर्सनल इश्यू है कंप्यूटर का, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ठीक होगा तो मैं फिर जितना मेरा काम तकरीबन बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हुआ पड़ा तो मैं वो फिर अपडेट कर दूँगी। लेकिन आज मैंने मुझे एक्सेस मिल गई थी गूगल शीट की और उस पे मैंने मेडिटेशन में डन लिखने की कोशिश की और लॉ की प्रैक्टिस की और मैंने अपना नाम भी लिखा। जबरदस्त. चलें जी, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो वेरी मच. लेकिन कोशिश करें कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर लें. ठीक है जी मैम। जी. मिस लुबना, आपका क्या सवाल है, क्या चैलेंज रहा आपका? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम. अच्छा, एक तो वो जो 11 लैब्स का इशू आ रहा था मेरा, जिसमें क्रेडिट्स थे पूरे और वो नहीं हो रहा था, वो आपने मुझे लास्ट में कहा था कि आप चैट जीपीटी पे इसको पूछिएगा, और मैंने उनसे वहां पे क्वेश्चन किया तो वो ये आ रहा था कि ये 11 लैब्स की तरफ से आपको नहीं आई रिस्ट्रिक्शन, ये ओपन एआई की तरफ से आई है। आपका जो सर्वर है उसके ऊपर बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शंस हैं, तो आप अपना सर्वर सेपरेट करें। मतलब मैंने जहां से इंटरनेट कनेक्शन लिया है इट मीन्स कि वहां पे बहुत सारे लोग वो यूज कर रहे हैं, शायद इस वजह से आ रहा है। तो वो तो मैं नहीं सॉल्व कर सकती, तो फिर इसलिए फिर मैंने सुनो डॉट एआई पे बना लिया था सॉन्ग ही उसको, 11 लैब्स उसका नहीं यूज मतलब कर। ये नहीं है कि आपके सर्वर का मसला है. सर्वर मतलब ये जो आपका इंटरनेट आपको प्रोवाइड किया गया ना, उस डिवाइस को बहुत सारी डिवाइसेस ऑलरेडी जी जी कनेक्टेड है. जी जी तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो घर की डिवाइस है ना, उससे उस टाइम पे कोशिश करें कि कुछ डिवाइसेस को डिटैच कर दें. मतलब समटाइम ऐसा होता है कि जो हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर भाई साहब हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि वो हमारे इंटरनेट को, अगर सामने वाला घर वाला कोई कहता है कि हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा है, वो कहते हैं अच्छा ठीक है इतना आ रहा है, अभी फिलहाल इनका पासवर्ड और मैं इंटरनेट दे रहा हूँ, ये यूज कर रहा हूँ, बाद में आपका सही कर देता हूँ. हम्म तो वो हम हमारे विदाउट परमिशन ये चीजें करते हैं, अगर एक ही जैसी कंपनी से आपने इंटरनेट लिया हो. और ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो कराची रहते हैं उनके साथ ऐसा होता है. अच्छा ठीक है। और चले मैम वो भी मैं करके देख लूंगी, बाकी ये कि अभी तक तो मेरे सारे टास्क कंप्लीट है। मैंने गूगल शीट अपनी चेक की थी तो वहां पे कुछ टास्क के सामने लिखा हुआ था इनकम्प्लीट, तो मैम वो मेरे टास्क इनकम्प्लीट नहीं है, मेरे टास्क फेसबुक पे सारे कंप्लीट हुए हैं। अब उसमें से कुछ इंस्टाग्राम पे नहीं लोड हो सकते, कुछ लिंक्डइन पे नहीं हो सकते। लिंक्डइन पे वैसे भी मेरी रिस्ट्रिक्शन है, एक मैं थोड़ा थोड़ा करके कर एक सकती हूँ। एक मिनट. कौन सा टास्क जो है जो इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं होगा? हालांकि मेरा इंस्टा और फेसबुक मैम दोनों लिंक्ड है, लेकिन जैसे कॉल एनी पे बात कर, मतलब किसी भी टूल से जब बात करते हैं तो वो वहां नहीं जाती, लेकिन पोस्ट अगर मैं करती हूँ ना तो वो हाँ, दोनों तरफ शेयर हो जाती है, वीडियो नहीं नहीं जाता जाती। एग्जैक्टली. वो तो वो नहीं फिर जाती. और वो इनकम्प्लीट लिखा हुआ है यूज टास्क, करेंगे लेकिन ना. जॉब सर्टिफिकेशन में ये चीज प्रॉब्लम करेगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी पहले ही इसको डिस्कस कर लूँ। हाँ जी, ये बात सही है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो इंटरव्यूज है ना आपके, उनको बेशक आप जो है वो नहीं पोस्ट करें, लेकिन फिर आप वहां पे मेंशन करें ना कि ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट कांट पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, क्या आप इंस्टाग्राम इसको पोस्ट नहीं कर सकते. ठीक है.
इससे ये होगा कि सामने वाले को समझ आ जाए कि ये इंस्टाग्राम पे इसलिए नहीं पोस्ट हुआ क्योंकि ये पोस्ट हो नहीं सकता इंस्टाग्राम पे। तो मतलब आपने रीजन लिख लिया है ना वहाँ पे अपने गूगल शीट में? बस ये नहीं, बात। ये रीजन नहीं लिखनी, मैं रीजन लिख देती हूँ वहां पे। वैसे बाकी सारे टास्क कंप्लीट है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो इनकम्प्लीट है, बट वो सही है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट ना होने की वजह से वहां पे इनकम्प्लीट स्टेटस आ रहा है। तो वो मैं चाह रही थी कि इसको मैं यहीं से सॉल्व करूँ, बजाय इसके हाँ कि आगे जाके ज्यादा मेरे लिए जो है वो मुश्किल हो, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मेरे लिए स्केड्यूल टफ होता जा रहा है मेरी जॉब की वजह से, इसलिए मैं परेशान हो रही थी इस चीज को देख के। तो जी, मैंने इस कहा कि अगर आप वो नहीं हो रहा तो आप उसको अभी वहां पे मैं अपने गूगल शीट को एक दिन वहां पे जो टास्क हमारे अपलोड नहीं हो सकते ना उनको वहां मेंशन कर दे। जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग स्टोरी पोस्ट कैनवा पोस्ट अपलोड नहीं करेंगे अपने यूट्यूब पे, आप वहां पे यूट्यूब पे लिख सकते हैं कांट पोस्ट ऑन यूट्यूब, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपसे कहा था कि आप एआई सेशंस को नहीं पोस्ट कीजिएगा क्योंकि वो जो हमारे पास इंस्टाग्राम है उस पर डाउनलोड करके पोस्ट करने पड़ते हैं। जो कर रहे हैं दैट्स वेल एंड गुड, वो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप कर देंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली ये शीर्ष है आ, अभी बहुत सारे पुराने सर्टिफिकेट इसीलिए अवार्ड नहीं दिए जा रहे क्योंकि उन्होंने चालू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने सारे टास्क अपलोड नहीं किया। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हिंड्रेंस आ रही है। अगर आप कर देंगे तो आपके लिए ही अच्छा हो। बट मैम, अगर कोई जेन्युइन इशू आ रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए इस चीज को, कि हाँ, अगर नहीं जेन्युइन हो इशू रहा। का तो मैं बता रही ना, अगर जेन्युइन इशू है तो आप वहां पे मेंशन करें ना। जैसे अभी हम में से एक दो पार्टिसिपेंट हैं जिनका लिंक्डइन जो है वो डिसेबल हो गया। जैसे मिस गुलशान है, इन्होंने बताया कि मेरा लिंक्डइन डिसेबल हो गया और अभी तक वो रिकवर नहीं हो रहा। तो मैंने इनसे कहा था कि ठीक है आप वहां पे लिख दे जिस स्टेट से वो डिसेबल हुआ है उस स्टेट से लिख दे गॉट डिसेबल, दैट्स इट। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ठीक है। अब आप हम भी इन चीजों को समझ के ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि चीजें स्ट्रीमलाइन पे। जी मिस गुलशान। मिस मरियम, एक तो आज मैंने रीस्ट्रीम को यूज करने की ट्राई की थी इंटरव्यू के दौरान। तो मेरा जो हम्म, यूट्यूब चैनल है वो तो काफी पुराना है, लेकिन मुझे उस पे भी ना 24 आवर्स का उन्होंने टाइम दिया ना कि आप लाइव नहीं जा सकती 24 आवर्स से पहले। और दूसरा, मैं जब डाउनलोड करके तो मैं यूट्यूब पे जब अपलोड करती हूँ इंटरव्यू या इंटरव्यू की बेसिकली, तो वहां पे ना वो शॉर्ट वीडियो आती है 3 मिनट की। ये और तीसरा आपसे क्वेश्चन था, अभी आपने ना ये हमारे आज के टास्क शेयर किए हैं, तो इसमें एंड पे आ गया है सॉन्ग क्रिएशन का, हार्ट ऑफ लाहौर एंड द सोल ऑफ मुल्तान। तो ये तो सॉन्ग हम कर चुके हैं, कर तो चुके क्या हैं ये तो बस आप बता उसको लिख देंगे रिपीटेड, दैट्स इट, आपका काम हो गया। ठीक हो गया? तो ये हमारे मेरे करिकुलम मीटिंग में भी जो बैठे हुए हैं वो इंसान है, गलती उनसे भी हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई भी टास्क जो रिपीटेड हो आप उसको लिख सकते हैं कि दिस इज रिपीटेड। तो वो फिर इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट बैचेस है उनके लिए इस बुक को चेंज कर रहे हैं अभी। लेकिन अब आपके लिए शेयर हो चुकी है तो इसलिए अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे। और मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे हमारी अटेंडेंस जो है वो 16 से कंटिन्यू हुई थी, तो वो जो पहले दिन की जो अटेंडेंस सामने हमारे पास जो पेज आया था उसमें तो किसी की भी अटेंडेंस नहीं लगी हुई। तो हम्म। और हम तो मतलब कि सारी क्लासेस हम लोगों ने, मेरी एक दिन का था जिस दिन मैंने आपसे कहा था कि मैं ऑफ कैमरा होंगी, बाकी तो हम्म। मैंने एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ी ना कि मैंने एक एक दिन भी मिस की हो। तो जी। और मैं जब से ये अटेंडेंस फॉर्म आया है मेरी कोशिश होती है कि मैं अटेंडेंस लगाऊं, कि मेरी हम्म। अटेंडेंस, मैं इसके बारे में बड़ी मुहतात हूँ। तो उसके बावजूद मेरे कुछ खाने जो हैं वो खाली हैं, कि वो जो वो फॉर्म शेयर हुआ है, तो ये बाद में हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक तो नहीं हो जाएगा? मिस विशान, पहली बात है हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अटेंडेंस हमारी मिस है जो 15 दिन की वो हम उसको मेंटेन कर लें क्योंकि वो हमें लाइव सेशन से देख के सारी मेंटेन करनी पड़ी है। तो पूरा लाइव सेशन 2-2 घंटे का देख के फिर हम आपके अटेंडेंस को मेंटेन करेंगे जो पिछले 2 हफ्ते की है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो है हमारे वो 100% उनकी अटेंडेंस है। अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट नहीं है जिसको मुझे कहना पड़ेगा उसने कहा ज्वाइन नहीं की। जिन जिन की छुट्टियां हैं वो मेरे पास रिकॉर्ड में लिखी हुई है, सो दैट्स प्रीटी ओके, परेशान नहीं हुआ, ठीक है। ओके जी मिस सोलत, लेकिन ये अटेंडेंस फॉर्म जो है इसको आप डेली डेली अपडेट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, फिर मुझे लिखना नहीं पड़ेगा मैनुअली, फिर हमारे पास सारी चीजें डिजिटलाइज होगी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम मिस। मिस वालेकुम। मिस मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जब मैं कॉल एनी कर रही हूँ तो वो लाइव तो जा नहीं रही मेरी, वो
पैसे मांग रहे हैं, और मैंने जो है पर रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा था, तो मैंने सिर्फ लिंक शेयर कर दिया। तो क्या मैं लिंक शेयर कर सकती हूँ? रिकॉर्ड किया मेरी था मैंने, बहन, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रही। तो जो स्टीम यार्ड और स्टीम है उन्होंने अपनी जो है ना वो चीजें रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप सब प्लीज जूम के थ्रू रिकॉर्डिंग कर लें, तो आपकी रिकॉर्डिंग पॉसिबल हो जाएगी। उसकी वीडियो भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दी कि आप किस तरह से जूम के थ्रू रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि अगर आप जूम से रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, उसको डाउनलोड करेंगे तो आप वेबसाइट को नहीं यूज करेंगे, आपने जूम को इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में और देन आपने जूम को यूज करना है। अगर आप वेबसाइट से करेंगे तो आपको फिर जूम भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप अपनी रिकॉर्डिंग को जो है वो डाउनलोड कर पाए। ठीक है, थैंक यू मिस। जी। और मिस सौरभ, मुझे भी आपसे एक छोटी सी कंप्लेन है, प्लीज आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेट कर लें। मिस राहत हमारे साथ है। मिस राहत, मैंने आपसे 2 बार पहले भी रिक्वेस्ट की है, नहीं है वो, मैं 2-4 बार उनसे पहले भी कह चुकी हूँ, प्लीज उनसे कहिएगा और आप ना मुझे प्रोफाइल पिक्चर के लिए एक अच्छी सी पासपोर्ट साइज की पिक्चर भेज दें, ठीक है? और सामने से ली गई पिक्चर हो, कोई सेल्फी कोई साइड पोज ना हो, ठीक है? ओके ताकि फिर मैं आपकी जो है वो प्रोफाइल पिक्चर बना के आपके साथ शेयर कर दूँ। मिस, मैंने डाली है, अभी आप चेक कर लें। अभी थोड़े 5-10 मिनट पहले ही मैंने है, तो आप चेक कर लें, वरना अगर आप कहेंगी तो फिर मैं दूसरी दे दूंगी आप। जबरदस्त हो गया। फिर आप दूसरी बात ये कर लें कि अपने व्हाट्सएप पे भी अपलोड करते हैं, आपके व्हाट्सएप पे एस लिखा हुआ है सौरभ की जगह पे। नहीं मिस, मैंने अभी चेंज करी है, चलें अभी ठीक चेंज है करी है 10 मिनट पहले मिस। अच्छा चलो फिर ठीक, मैंने और 10 मिनट पहले देखा। ठीक चलिए, है मिस। बहुत शुक्रिया। मिस सिशान, कैसी हैं आप और क्या सवाल है आपका? मैम मैं ठीक, आप बताएं। मैं ठीक ठाक जी, बताइएगा। मैम वो मैंने व्हाट्सएप पे प्रोफाइल बना लिया अपना, बट मैंने वो नंबर चेंज किया, जबरदस्त। तो मैं आपको वो नंबर सेंड करूंगी, आप ग्रुप में ऐड कर दें प्लीज। जी ठीक हो गया। और एज पर दूसरी योर बात ये है ऑर्डर कि आप मुझे मैसेज कर दें तो आपका नंबर ऐड हो जाए। और दूसरी बात ये मैम कि जो वो जो व्हाट्सएप की प्रोफाइल है ना, लाइक जैसे हमने इंस्टा और फेसबुक पे जो बायो लगाई हुई है, वो व्हाट्सएप पे नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा बायो नहीं लिखी जा रही, तो मैंने बायो चेंज कर दी व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे इतनी ज्यादा बायो नहीं लिखी जा रही, व्हाट्सएप पे तो अच्छे नहीं खासे करेक्ट लिखे जा सकते हैं। अच्छा, नहीं, वो उसमें से जो बदल के चीज लिखी आपको जा लगता है कि ये वो 12th ग्रेड वाली चीजें आप स्किप कर दो, बाकी सारी चीजें लिखी रहने दो। तो मैम वो मैंने चेंज कर दी उसको। चलें जी, ठीक। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। जी फर्क सलीम भाई। जी कैसे हैं आप? खैरियत से? जी जी, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं? अच्छा, लगे ये वेबसाइट है ना, जिन बाबा डॉट नेट, इसको मैंने काफ़ी किया। ये मेरे पास तो ये ओपन नहीं होती, और ये जब भी इसको ओपन करो तो ये वही क्या नाम है, चाइनीज़ वेबसाइट देता है। खैर, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किए वीडियोस। तो ये कोई इशू सबके साथ आ रहा है, या ये मेरे साथ ही इशू है कि ये यहाँ पर नहीं नहीं, ये इशू सबके क्या है साथ ये? ही आ रहा है, क्योंकि उस वेबसाइट पे थोड़ा काम चल रहा है, इसलिए ये इशू आ रहा है। बट आई कम्युनिकेटेड, मैंने जैसे कि लास्ट वेडनेसडे को ही ये बात फॉरवर्ड कर दी थी कि हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे इसमें बताया गया वीकेंड पे कि हमारी उस वेबसाइट पे काम चल रहा है। हम 2-4 प्लेटफॉर्म और ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ नई चीजें उसमें ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल इशू है। तो तब तक के लिए आप थोड़ा मैनुअली काम कर लें, इंशाल्लाह फिर जल्दी ये स्ट्रीमलाइन हो जाए। जी मिस गुलशान की। मिस मरियम, ओके, मेरा लिंक्डइन जो है वो तो डिसेबल है इस वक्त, राइट नाउ। तो मैं वो उसकी प्रिकॉशंस पढ़ रही थी कि मैं जब तक ये डिसेबल है मैं दोबारा नया बनाने की ट्राई भी ना करूं। तो बिल्कुल। ये अंदाजन कब तक रहेगा या ये खत्म हो गया? हाँ मिस गुलशान, लिंक्डइन अपनी पॉलिसीज किसी के साथ शेयर नहीं करता। अगर तो मेरे पास लिखी हूँ तो मैं तो सबको बता दूं, और मेरे सारे बच्चे और मेरी सारी चीजें, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। लेकिन ये लिंक्डइन और फेसबुक ऐसी 2 प्लेटफॉर्म है, जब इनका मूड होगा तो आपका अकाउंट ये दोबारा से इनेबल कर देंगे। मे बी इट टेक्स अ वीक, मे बी इट टेक्स 2 or 3 days, मे बी इट टेक्स मंथ्स। तो मुझे कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि ये कब आपका अकाउंट जो है वो दोबारा से इनेबल कर दें आपके लिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आप अपने बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस को मेंटेन रखें और उनके लिंक्स एडिट कर दीजिए, और इसका एक ही वही मैसेज कॉपी करके सारे ब्लॉग्स में फिल कर दे कि ये डिसेबल है। क्योंकि जब एक बार डिसेबल हो जाता है ना, न्यू अकाउंट इसलिए, सॉरी, न्यू अकाउंट वो इसलिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं क्योंकि आपका आईपी रजिस्टर्ड हो जाता है। और जब आईपी रजिस्टर्ड हो जाता है ना, आप दोबारा से उस पे अकाउंट्स क्रिएट नहीं कर सकते। लाइक अभी हमारे जो है अकाउंट बहुत फ्रीक्वेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के। तो जब हम उनसे 2 अकाउंट बनवा लेते हैं,
एक ही आईपी एड्रेस से एक ही लैपटॉप से 2 अकाउंट बनवा देते हैं, तो थर्ड टाइम वो स्ट्राइक दे देता है कि अब आप ना तो अपील करेंगे और ना ही आपने इसी आईपी एड्रेस से अकाउंट बनाना है। तो फिर आपको चेंज करनी पड़ती है डिवाइस, या तो आप सेलफोन से बनाएं या फिर आप दूसरी लोकेशन से बनाएं ताकि आपके अकाउंट क्रिएट हो। तो ये भी है, इसलिए अगर आपका एक अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो आप तो एडल्ट है, आपका अकाउंट हो जाएगा। ये श्योर है कि डिसेबल से इनेबल हो जाएगा, लेकिन इट टेक्स टाइम। आपको कितना टाइम ये नहीं पता, क्योंकि अभी हाल ही में जो टक्का वाले मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अकाउंट 5 अकाउंट डिसेबल हुए थे फेसबुक के, जिनमें से 3 जो है अभी आज रिकवर हो गए और 2 अभी भी पेंडिंग में चल। ठीक है, तो इंशाल्लाह हो जाएंगे आपके भी। और 1 वीक लगा एक ही अकाउंट को, 1-2 वीक के बाद हुआ था, इस तरह करके उनके अकाउंट दोबारा से रिकवर हो। जी नसीमुल्लाह भाई, अटेंडेंस फॉर्म हैज बीन शेयर्ड इन द ग्रुप, सो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस ऑलमोस्ट लगेंगे। मिस लबना कह रही है 10 दिन लगेंगे क्योंकि उनका अकाउंट भी डिसेबल हुआ था और फिर इनेबल हुआ तो टाइम लगा था उनको, तो आप थोड़ा पेशेंसली वेट कर लें, तो इंशाल्लाह आपके भी हो। जी नसीमुल्लाह भाई। मैम कुछ लोगों ने ना अपने कुछ पार्टिसिपेंट ने अपनी गूगल शीट पे लिखा हुआ स्टोरी पोस्ट 1, अब उसके नीचे लिंक कोई नहीं प्रोवाइड किया हुआ। लिखा ऊपर है सारा इसी तरीके से ना, पूरे पेज पे कुछ चीजें लिखी हैं, रिव्यू 1, सॉन्ग क्रिएशन 1, लेकिन आगे उनके लिंक के साथ शायद उन्हें ख्याल नहीं रहा पोस्ट करना। तो ये जरा एक दफा कर लें, जिन्होंने किए हुए हैं वो काइंडली वो कर लें। सर मैंने भी ऐसे ही किए, जी। लिंक पोस्ट नहीं किए, अब दोबारा करने पड़ेगा। तो बस फिर आपको साथ साथ करना चाहिए है ना। और हमने गूगल शीट इसीलिए मैंने दूसरे दिन इंट्रोड्यूस करा दी थी कि बहन अब जब मुझे इशाला की ये ना कह मैं पूरी फेसबुक स्क्रॉल करके ढूंढूं मैंने कब डे 1 का टास्क किया था, तो वो मेरे लिए मुश्किल है। हो जाएगा 2 दिन तक इंशाल्लाह, लिंक सारे डल जाएंगे। चलें जी, जबरदस्त, अल्लाह ताला आसानियां करे आपके लिए, आप कर लें, बहुत शुक्रिया। जावेद भाई आपको जूम चैट में नसीमुल्लाह भाई इनको वो शेयर कीजिएगा, हमारा बैकग्राउंड जो सबका लगा हुआ है, प्लीज वो वाला बैकग्राउंड शेयर करते हैं, जावेद भाई भी इनेबल कर ले, उन्होंने ढूंढ ही लिया अपने लिए कहाँ से वो लगाएंगे। जबरदस्त जावेद भाई। ओके पार्टिसिपेंट्स, आई होप कि आप सबकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, मैंने सुन ली है और आप बहुत सारी चीजें जो मुझे पता थी मैंने सजेस्ट कर दी। अच्छा, मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरी वजह से आपका एक दिन डिले चल रहा है, अगर आप लोग थोड़ा सा ऑपरेट करें तो हम सेम एक दिन में 2 दिन का काम कंप्लीट करके और फिर हम अपने सेम टास्क पे आ जाएंगे। लेकिन आज मुझे वीक 4 का डे 1 कराना था, लेकिन हम स्टिल वीक 3 के डे 5 पे हैं। तो अगर आज आप थोड़ा सा टाइम दे दें और हम जल्दी जल्दी थोड़ा सी चीजों को वाइंड अप करें, तो हम जो है वो वीक 4 का डे 1 भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स अ वेरी न्यू थिंग। और उसमें बहुत सारी एक्साइटेड चीजें भी हैं, जिसलिए मैं चाह रही थी कि हम सेम डे को ही स्टार्ट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, rather than कि हम डिले करें। तो आज की जो हमारी टास्क है उसमें सिर्फ एक टेड टॉक देखने वाली है, बाकी सारी चीजें तो आप ऑलरेडी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मुझे उनको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू कंडक्ट करना है, कॉल एनी सेशन, अच्छा ये एनी का सेशन नहीं करें, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आपको मैंने जो है वो जेमिनी परप्लेक्सिटी ये 2 चीजें बता दी हैं, अदर देन कॉल एनी, अदर देन चैट जीपीटी। ठीक है, तो प्लीज परप्लेक्सिटी के सेशंस करना शुरू कीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा परप्लेक्सिटी को यूज कर सकें। ठीक है, एक सिर्फ चैट जीपीटी हमारे पास एआई टूल या एनी एआई टूल नहीं कम्युनिकेशन के लिए, आप परप्लेक्सिटी से भी बात करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला चैलेंज आपका खत्म हो जाएगा। तो हम पहले टेटॉक देख लेते हैं, फिर टेटॉक के रिव्यूज ले लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं अपना आज वीक 4 का डे 1, और इसके साथ ही साथ आपके कुछ टास्क और एडेड हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपके लिए रिलैक्स कर सकती हूँ आपको कि जो वीक 4 के टास्क हैं उनको हम डे 1 को हाफ अप कर लेते हैं। ठीक है, कुछ आज इंक्लूड कर लेंगे डे 1 के टास्क, कुछ हम कल कर लेंगे, तो इस तरह करके हमारे जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अरे वाह, परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है भाई, डे 1 के टास्क के हमारे बहुत थोड़े से हैं और वो क्लास में ही कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम आज सारे के सारे ही कर सकते हैं। गुड हो गया। अच्छा, बस आपको ये करना पड़ेगा, सॉन्ग आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है, डे 3 का टास्क कंप्लीट हो गया, वीक 3 का टास्क कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने अभी टेड टॉक देखना है, वो आप रिव्यू बाद में रिकॉर्ड कर लीजिएगा। देन आपने एआई सेशन जो है वो कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपके पास परप्लेक्सिटी, जेमिनी और चैट जीपीटी के सेशन है। ठीक है, और डे 1 में वीक 4 के कोई एआई सेशन नहीं है, सो नो नीड टू वरी, वहां पे हमारा कुछ ज्यादा लंबा काम नहीं है, वो मैं क्लास में ही अभी आपको करा दूंगी और डे 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा वीक 4 का। ठीक है, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आज हमने डबल काम कर लिया। 9:30 हुए हैं, टेड टॉक देखते हैं, टेड टॉक के बाद वापस आते हैं, और आज की टेड टॉक है हमारी
15 मिनट और 40 सेकंड की। तो इसका मतलब है कि मैं आपको 16 मिनट दे रही हूँ। लाइक द टाइम इज 9:31। यू गैस बी बैक एट 9:47 शार्प। 9:47 में आप सब वापस आएंगे ताकि हम टेड टॉक के रिव्यूज ले सके। So I already shared the TED Talk link in the WhatsApp group, and I'm sharing in the Zoom chat as well. Okay. Go and watch the TED Talk and then be right back. Yes. जावेद भाई, आप जो नसीमुल्लाह भाई ने जूम चैट में एक बैकग्राउंड शेयर किया है, उसको डाउनलोड करके जिस तरह से ये वाला लगाया ना आपने, इसी तरह से उसको लगाए। वे सब अनम्यूट करें ना अपने आप को, पता चल गया आपको बात? जुवेद भाई आपका माइक बंद है। हाँ सर, आवाज आ रही है। अच्छा, आप डाउनलोड कर लें उसको। जी। तो जिस तरीके से आपने अपना बैकग्राउंड लगाया ना, इसी तरीके से वो लगा लें। अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा आप। अगर डाउनलोड ना हो रहा हो तो या तब भी बताएं। ठीक है, मैं भी चेक कर रहा हूँ। ओह, आई फॉरगॉट इट। हम तो फेसबुक पे लाइव होते हैं ना, हम टेड टॉक सब एक साथ मिलके देख सकते हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम टेड टॉक सब मिलके देखें तो हम टेड टॉक मिलके सब देख सकते हैं। सो कल से हम कोशिश करेंगे हम सब टेड टॉक एक साथ देखें। जुवेद भाई आप मुझे अपडेट करें, डाउनलोड हो रहा है कि नहीं? सर, हो रहा है। सही। सर, सेव तो हो गया ये। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जी जी, जहाँ सेव किया ना वहां से अपलोड कर दें, जैसे अपना जी बैकग्राउंड अभी किया हुआ है। जी जी जी। जी जुवेद भाई अपलोड नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? सर, वो फोल्डर नहीं मिल रहा मुझे बस। अच्छा, मैं आपको व्हाट्सएप करने लगा हूँ। नहीं, व्हाट्सएप में सर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ना। नहीं, स्क्रीनशॉट उस तरह करना, वो आएगा नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। मैं इसी जो हमारा ग्रुप है ना, कॉमन ग्रुप, इसमें शेयर करने लगा हूँ। ठीक है सर, कर दीजिए।
मैम, सर आप जी मौजूद हैं? जी जी मैम, मैं ना है हाजिरी नहीं लगा रही शीट में। एक दिन मैंने कोशिश की, फिर मुझे समझ नहीं आया, क्या उसमें भी हमने अपनी ईमेल डालनी है पहले? नसीम भाई आपको गाइड कर देते हैं, जरूर से। जी मैम। मैम आप इसको क्लिक कर लें, आप ये इस तरह करें, अब इसको क्लिक करें, देखें क्या आता है आपके सामने, पहले जी क्लिक करें। सर, जी सर, मैं देखती हूँ। सर सर मेरे सामने आया है ऑटो सेव योर वर्क और नीचे ओके आया है। छोटी स्क्रीन आई है बड़ी स्क्रीन पे। इस तरह नहीं आपको अच्छा सर, मेरे पास एक पेज आया है पर्पल कलर का, बहुत लाइट पर्पल। रिहान एआई टीचर ट्रेनिंग बैच 11 लाइव सेशन एग्जिट हाँ, टिकट। उससे नीचे है लैला खान अरीशा _gmail.com स्विच आप अकाउंट लिखा हुआ है। आप अपना नाम है, आपका अकाउंट जीमेल उसमें लगा होगा, आप देखें आपका जीमेल नजर आ रहा है ना। यस सर। आप अपने नाम पे क्लिक करें, जो एक सर्कल बने हुए हैं। सर जहाँ स्विच अकाउंट ब्लू कलर का है उसको टिक करूं? नहीं, उसको रहने दें। जी सर। अच्छा नीचे, सही। पार्टिसिपेंट्स नेम है ना, वहाँ लिखे आप। जी सर, एक दिन ऐसे किया है पर मुझे लगा मेरी नहीं लगी तो। अपने नाम को क्लिक कीजिए। जी किया है, वो डार्क पर्पल हो गया है। उसके नीचे आपका ईमेल है, उस पर कीजिए। जी सर। अब उसके नीचे आ जाता है मंथ, डे और डेट है, ईयर है, इसको जी करें। सर। आप करेंगे ना, राइट साइड पे एक बना हुआ है स्क्वायर, इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे। जी सर, ईमेल डाल गई है। अपडेट ये जो मंथ। MMPDYY लिखा है ना, इसके राइट साइड पे एक डब्बा बना हुआ है, इसको करें क्लिक। अच्छा, सही। ये है मार्च। हो गया सर? हेलो। जी जी, हाँ हो गया, जावेद हो गया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये हो गया मार्च और यकम। जी सर, मैंने अपना एंटर द डेट ऑफ योर सेशन भी कर लिया है। और व्हाट इज ओ वन की अच्छा, कंसेप्ट? मैं आपको बताता हूँ कि दो नीचे पॉइंट है, इसमें ये है, पहला जो पॉइंट है कि आज जी आप सर। एक बात सीखी हो वो लिख दें। ये इसलिए है ताकि जो बच्चे, जो पार्टिसिपेंट हमारे इधर सेशन में होते हैं, उन्हें पता हो हमने क्या पढ़ा। एक पॉइंट कोई जो आपने सीखा हो वो बता दें, और नीचे जो एक बात अभी आप पूछना चाह रहे होते हैं, कोई भी हो, जो भी आप लिखना चाहे इसमें आप लिख दें, वन वर्ड लिख दें, सेंटेंस लिख दें। सर ये दोनों सोच के आंसर करने वाले मामले हैं। आप अभी अभी आप एक कुछ एक लिख दें, कुछ भी लिख दूं? एक लिख दें। व्हाट इज वन की कंसेप्ट और आइडिया ऑनलाइन।
मैम अगर ना हो तो आप बताएं। नहीं सर, मैं लिख रही हूँ। बस एक दो वर्ड लिख दें, बस काफी है। सर ऐसे थोड़ी लिख देने, ऑब्वियसली अगर हमारा वो कमेंट हमारी फीलिंग्स होना चाहिए। चलें चलें चलें, जैसे आपको अच्छा लगे। ये हमारा एक तो आप ये मुश्किल 2 टास्क ऐड किए। अच्छा, इसको मैं, अब मैंने इसको ना रिमूव कर दिया है, हाँ कंपल। सर, सर उसकी वजह ये है, देखें ये हमारी एक राय है, एक अच्छी राय और एक सजेशन, तो वो हम बहुत जल्दी में नहीं देना चाहिए। वो अगर हम जल्दबाजी में देंगे तो वो बुरी बात है, मे भी हम उस टाइम वो ना सोच रहे हो, वो ना चाह रहे हो, बट हम जल्दी में गलत कर देंगे। तो चल, ये एक बहुत बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में हमारे इदारे के लिए और हमारे हक में ये है कि हमें बड़े एक सेंसिबल वे में जाके बड़ा सोच समझ के आंसर करना चाहिए। सही हो। सर मैं ऐसे सबमिट कर दूं? वैसे हाँ, मैंने पहले का लिखा था ऑनलाइन, मतलब एक लर्निंग सेंस आ रही है मुझे, बस जो मैं ठीक, सबमिट गेन कर, कर रही हूँ। ठीक हो गया, सबमिट। जी सर। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा सर, ऑप्शन दिए बगैर। अब मेरी टेड टॉक रास्ते में है, चलें पहले मैं इसी को हाँ, आज आप देख लेती हूँ। मैडम इसको बाद में कर लीजिएगा, आप ठीक अपने। है ठीक है ठीक है सर, वो आखिरी रह गया, लेकिन वही मेरा एक अपनी थिंकिंग है माइंड की, कि मैं ऐसे क्वेश्चन को फिर ऐसे ही नहीं आंसर करना चाहती। आज के लिए वैसे ही कर दें, बाकी ठीक है सर। अच्छा,
बड़े बड़े सर थोड़ी थोड़ी कामयाबी मिल गई, गलत सही लिख आई हूँ आज पहली दफा। बहुत अच्छा किया। थैंक यू सर। Okay, participants, please turn on your cameras. Our time is ended. So let's start a review session. Yes, everyone, please turn on your cameras. Thank you. Okay. So, anybody who wants to share the review voluntarily? Miss Lubna, Asif Bhai, Miss Kuchan, Ishal, Hamza, please turn on your camera. Yes. Anyone who wants to share the review voluntarily? Shafiq Bhai joined us and then I could see Shafiq Bhai. Okay. जी मिस कुशान, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया? आज की टेड टॉक में सबसे मजे की जो चीज थी ना, वो उनका, आप कह लें, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। हम्म। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी जबरदस्त थी, काम और ऑप्टिमिस्टिक, और बड़ी मजे की थी कि उनके उनको सुनने से ज्यादा उनको देखने का मजा आया है कि वो बहुत इजी थे। उनको उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से हमें बताया है कि कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है। और जैसे उस दिन फायजा ने कहा था, अलेक्जेंडर वैंग की जब देखी थी, एआई विल नेवर रिप्लेस ह्यूमंस, तो उन्होंने कहा था ना कि मैंने फौरन जाके पहले देखा कि ये कब कब की है ये टेड टॉक, तो मैंने कहा ये भी कहीं बहुत पुरानी ना हो, तो मैंने भी जाके पहले उसको चेक किया है। तो थैंक गॉड क्या? ये 2024 की है, ये इतनी पुरानी नहीं है। मतलब कुछ लोग मौजूद हैं अभी कैसे, उन्होंने बड़ा अच्छा हमें पर्सपेक्टिव दिया है ना। उन्होंने कहा है कि जिंदगी जो है उसको आजकल एक लफ्ज बड़ा मेरी जुबान से निकल रहा है, कैनवस, कि जिंदगी का जो कैनवस है उस पे अपने आप को अपडेट करें, लेकिन अपडेट इस तरह से करें कि एआई जो है वो आपके आप भी अपडेट हो और एआई भी हो, एआई को अपने साथ मिला के चलें। जिस तरह से वो तब्दीलियां आ रही हैं उस तरह से आप ये ना समझे कि आपकी नौकरी की खत्म हो गई है तो आप खत्म हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि तब्दीली आई है तो तब्दीली आपके लिए कुछ और चीजें जो उसने पैदा कर दी हैं, जो नई चीजें पैदा कर दी हैं उसके लिए, मतलब ये इसमें ना अडेप्टेशन का जो है ना, आप कह लें कि इसमें अडेप्टेशन का जो आंसर है वो बड़ा नुमाया है कि एआई और ह्यूमंस इनके दरमियान में अडेप्टेशन का जो रिलेशन है वो अगर होगा तो ही ये आगे से सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज फिर वो एक ना गैप आना शुरू हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी है, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक सी टेड टॉक है कि मेरे जैसे लोगों के लिए जो कहते हैं कि एआई इज नेसेसरी बट नॉट ओनली एआई, कि हमें अपनी कुछ वैल्यूज कुछ चीजें भी साथ रखनी चाहिए। तो ये मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है कि बड़ी ऑप्टिमिस्टिक सी है। अडेप्टेशन इसका एक लाजमी अंसर है कि इंसान के अंदर अडेप्टेशन होनी चाहिए, पुरानी चीजें खत्म करके नई चीजों को, जदीद तकाजों को देखते हुए उसको आगे से आगे जाना चाहिए। तो मुझे तो मजा आया है, उनकी बॉडी लैंग्वेज ने बड़ा मजा दिया है। चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच मिस कुशान। अहमद मुस्तफा भाई, क्या सीखा आज के टेड टॉक से, क्या समझ में आया? बेसिकली तो जेकब ने अपनी एक्सपीरियंस बताया कि वो एक कॉपी राइटर था, लेकिन जब से चैट जीपीटी आया है तो उनकी जॉब चली गई, मगर उन्होंने छोड़ा नहीं, उसको लर्न किया
और फिर उसी के अंदर उन्होंने काम किया। तो बेसिकली आप एग्जांपल ये भी है कि शादी के कार्ड्स पहले होते थे कि आके दे रहे हैं लोग, लेकिन अब ये होता है कि आप डिजिटली भेज देते हैं व्हाट्सएप के, ये है, ये डेट है, आ जाए। तो आप देख रहे डायरेक्टली उनका तो सारा बिजनेस ही खराब कर दिया। तो ऐसे ही है कि आपने वक्त के साथ चलना है, आपने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। तो जो नहीं करेगा ऑब्वियसली, वो तो आईएमएफ ने भी कहा कि 40% जॉब तो चली जाएंगी। तो एआई को आपने लर्न करना है। ऑब्वियसली जो उसको अडॉप्ट कर लेगा वो उसके साथ चल जाएगा, जो नहीं करेगा वो ऑब्वियसली। थैंक यू सो वेरी मच अहमद मुस्तफा भाई फॉर शेयरिंग योर रिव्यू, और बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप बाखबर है करंट सिचुएशन से। थैंक यू सो वेरी मच। जी शारदारा, क्या सीखा आज की डेट? यस मैम, सही बात है, लेकिन एआई ने इसने बताया कि एआई ने इसकी जॉब को एआई हमारी जॉब को स्टोर कर रहा है, लेकिन एआई वाकई में मतलब अच्छी चीज़ है। वो हमें ग्रो करना बताता है, हमारी क्रिएटिविटी सारी, मतलब जो भी हम क्रिएटिविटी करते हैं उसको हम भेजते हैं तो वो आगे से हमें अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। लाइक यही है ना कि ये कह रहा है कि आपको मतलब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि ये हमारे लिए एक न्यू थिंग है जिसको हम एक्सप्लोर करें, और एंड पे यही कह रहा है कि ये हमारे लिए एक होपफुल पॉजिटिव मैसेज है हमारे फ्यूचर के लिए। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। जी मिस लैला, क्या सीखा आज के टेट टॉक से, क्या समझ में आया? जी मैम, मैम मुझे इस टेड टॉक से यही बात क्लियर हुई है कि हमने आने वाले दौर में मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जैसे लोग, एक न्यू चीज़ आती है, ऑब्वियसली हर दौर का ये अलमिया रहा है कि जब भी कोई न्यू चीज़ आती है तो हमारी एवरेज, हमारा जो एक माइंड सेटअप है एज अ इंसान, तो हम भेड़ वाली चाल वाला हाल करते हैं। मतलब एक ही तरफ में, या तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोग जिधर जा रहे होते हैं हम उधर ही जा रहे होते हैं। अगर लोग घबरा रहे हैं तो हम रुक के सोचते नहीं, देखते नहीं कि अगर कोई इशू आ रहा है या क्या है ये चीज़, चले हम रुक के देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्या इसने टोटली चेंज हमें कर देना है, या थोड़ा मिलके हम इसके साथ बॉन्ड बना के थोड़ा बेहतरी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। थोड़ा सा इस बात को उन्होंने जो मैंने अंडरस्टैंड किया इसी हिसाब से, जैसा कि अभी मुस्तफ़ा भाई ने भी बात की कि ऑब्वियसली चीज़ें डिजिटलाइज होती जा रही हैं, बट उसके साथ साथ इंसान ने भी अपने आप को उसके साथ फ्रेंडशिप लेवल एक थोड़ा अपना अचीव गेन करना है, और अचीव करना है, चीज गैजेट्स को अंडरस्टैंड करना है, और मॉडर्न दौर के साथ डरना नहीं है एआई से, बल्कि उसके अपने आप को इतना चीज़ों से मतलब अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, और ताकि हम इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी जगह को बरकरार रखने की बजाय और बेहतर तरीके से बरकरार रख पाएं। जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। जी आसिफ भाई। मैम टिकटॉक में ये बताया गया है कि अगर हम एआई को फॉलो नहीं करेंगे, एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमारी जॉब आसानी से ले सकता है। इसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। अगर एआई को हम अपना असिस्टेंट बना लें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। जैसे एआई से कोई वॉइस वॉइस ओवर कर देते हैं, वॉइस क्लोनिंग होती है हमारी फैमिली का, या हमारा कोई जो है वॉइस क्लोन करके वो गलत इस्तेमाल कर सकता है किसी पोस्ट में, इसी तरह में। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच ओके। आसिफ भाई। जी शफीक भाई, क्लोन तो बनते ही है ना, वो तो हम ये भी कह रहे हैं कि जो ह्यूमन है वो भी अपने क्लोन बनाना शुरू करते हैं, दूसरों को इस तरह ट्रेन करना शुरू कर दे, तो कोई ना कोई चीज ऐसी रह ही जाएगी ना जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये रियल है या फेक है। जी शफीक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज के टेडेक्स टॉक में तो एक ही बात समझ आई है। ये बेसिकली जो पिछली टेडेक्स टॉक थी जिसमें एआई को के बारे में कहा गया था कि क्या ये ह्यूमन को रिप्लेस कर सकती है कि नहीं, तो मैं समझूंगा कि ये उसी की ही एक नेक्स्ट एपिसोड है जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एआई को रिप्लेस करने के काबिल नहीं है, अगर हम अपने आप को उसके साथ साथ अपग्रेड करते जाएं। इस हवाले से मैं रिसेंटली एक ना कंपटीशन हुआ है टोक्यो के अंदर, जिसमें ये 20 जुलाई को फाइनल था। उसमें पॉलिश एक इंजीनियर गालबन प्रोग्रामर था, उसका ओपन एआई के साथ कंपटीशन में उसने विन किया है। शायद ये बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी इसके बारे में इल्म हो।
तो अल्टीमेटली इस चीज़ ने एक दफ़ा फिर से ये साबित किया है कि अगर ह्यूमन अपने आप को अपग्रेड, मतलब अपने आप को कंपटीशन में रखना चाहता है, तो उसे अल्टीमेटली अपने आप को अपग्रेड करना है और वक्त के साथ साथ चलना है। अब वो प्रोग्रामर ने अगर एल्गोरिदम बनाकर और ओपन एआई के साथ कंपटीशन में अपने आप अपना लोहा मनवाया है, तो ये सुपीरियर ह्यूमन सुपीरियरिटी की एक जिंदा मिसाल रिसेंटली 20 तारीख की है। आज गालबन 28 तारीख है, 8 दिन पीछे की है। तो इट मीन्स के ह्यूमन इज सुपीरियर देन एआई। लेकिन हमने एआई को एज अ टूल इस्तेमाल करते हुए किस तरह से यूज़ करना है, इसको सीखने की ज़रूरत है। जी। जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद शफीक भाई। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसकी मैं एक बार बार सिर्फ छोटी सी एग्जांपल ये देती हूँ कि पाकिस्तान में जब ये सारा लैंड जो सिस्टम है उसको डिजिटलाइज किया गया, आज से 5 से 7 साल पहले की बात है, तो बहुत सारे हमारे ऐसे लोग जो है वो इंडक्ट किए गए उस जॉब रिक्रूटमेंट में जिनका कंप्यूटर फील्ड से कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, जिन्होंने प्रॉपर कंप्यूटर फील्ड की कोई डिग्री नहीं ली हुई थी, but actually they know about the computer, they know how to deal with these kind of the data and entry on the computer thing. So those just got the jobs, and they had just 1 year or maybe 6 year diplomas of the computer, and they secured the job. And two of them were my class fellows, और जिन्होंने अभी हाल ही में ग्रेजुएट भी नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ बीए किया था और उनको ये जॉब मिल गई थी। एंड वी वर कंप्लीटिंग आवर 4 years ग्रेजुएशन एंड ऑल दीज थिंग्स। बट अब ये सिर्फ वही बात है कि हमें अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और उसमें उस टाइम पे इतने अच्छे अच्छे और इतने जो कि बहुत अच्छे तरीके से पिछले 20 साल से 25 साल से उस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे, और उन्होंने जॉब छोड़ दी सिर्फ ये कह के वी आर एट द एज ऑफ दिस टाइम दैट वी कांट लर्न दीज थिंग्स, कि हम उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहाँ पे चीजों को ग्रास्प करना सीखना बहुत मुश्किल है, हम नहीं सीख सकते। और फिर उन्होंने 45 और 50 years ओल्डर जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन थे, फिर उनको वो जॉब छोड़नी पड़ी, उनका करियर खत्म हो गया। और वो जो यंग ज्यादा एनर्जेटिक लोग थे जिन्होंने वो अच्छे से कंप्यूटर को सीख लिया और वो जॉब टेक ओवर कर गए, और अभी तक माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे से सारी चीज को हैंडल कर रहे हैं और अब उसमें बहुत एक्सेल भी कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने करियर को और करियर की अपॉर्चुनिटीज को जो है वो ग्रैब करते हैं। और उसमें बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हाँ हम सीख लेंगे, कोई मसला नहीं है, इदारा हमें 5 से 6 महीने का टाइम दे दे, हम सीख लेंगे। और उन्होंने में से कुछ सीनियर सिटीजन ने सीखा भी, एंड दे आर डूइंग द वर्क, एंड दे जस्ट रिटायर्ड 3 years बैक। वो 3 साल पहले अभी मैंने सुना है कि वो लोग रिटायर्ड हुए जिन्होंने बहुत अच्छे से इदारे के साथ चलते हुए सारी चीजों को अडॉप्ट कर लिया। तो जब हम गो विद द फ्लो के साथ नहीं चलेंगे ना, तो चीजें खराब होना शुरू हो जाएंगी, हमारे अपने हक में भी और फिर दूसरों के हक में भी जो हम हमसे एसोसिएटेड है। जी आजम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वाली। अच्छा मैम, बेसिकली जो है ना वो इस वीडियो के अंदर जो है वो इस टेड टॉक के अंदर बेसिकली एक शिफ्ट की जो है ना वो बात हो रही है। तो मतलब मैं अगर अपनी थोड़ा सा आपको बताऊं कि मैंने जो है ना वो देखा इस तरीके से कि जैसे टाइपराइटर्स थे एक टाइम पे जब कंप्यूटर नहीं था, ठीक है। तो टाइपराइटर जो टाइपिंग करते थे, ठीक है, और उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, वो उधर ही रहे, और कंप्यूटर के ऊपर जो है वो शिफ्ट जो है वो नहीं हुए, तो वो लोग जो है ना वो पीछे रह गए, वो कंप्यूटर से डर गए। अच्छा, फिर कंप्यूटर के अंदर डॉस होता था, वो फ्लॉपीज होती थी, वो सारे जो है ना वो, तो उससे जो है ना वो फिर विंडोज आई, फिर विंडोज के ऊपर जो है वो आपका शिफ्टिंग हुई, ठीक है। तो इट इज जस्ट लाइक दैट के आज के दिन के अंदर जो है वो ये बात कर रहे हैं कि मुझे जो है वो जॉब मेरी जो है वो चली गई सिर्फ इस चीज़ की वजह से कि मुझे वो चीज़ आती नहीं थी, और बजाय इसके कि मैं उस चीज़ को जो है ना वो परेशान होता उस चीज़ के ऊपर, या उस चीज़ को जो है वो मैं छोड़ देता वहीं पे, मैंने उसको जो है वो सीखना शुरू किया, बल्कि उसको इस्तेमाल करके जो है वो मैंने मज़ीद जो है वो उसके ऊपर बेहतर काम किए, और मैं इन चीज़ों को आगे लेके चला। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि वो ये कहते हैं कि आपको जो है वो
इस शिफ्ट को जो है इसके साथ साथ जो है वो आपको जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए चीज़ों को, ताकि आप जो है वो, जैसे अभी आपने कहा कि गो विद द फ्लो वाली बात है, तो अगर आप जो है वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करते जाएंगे तो साथ साथ आप जो है वो चलते जाएंगे, क्योंकि इट्स अ टेक्नोलॉजी शिफ्ट। तो एग्जैक्टली मुझे और मैं एक बात ये इसके साथ एसोसिएट ये करूंगी कि इससे हमारी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। मतलब हम खामा स्ट्रेस पाल के बैठे होते हैं, मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या हो जाएगा। भाई आप जॉब सिक्योर करने की तरफ तो आए तो फिर जॉब मिल जाएगी। और अगर आप यही सोचते रहो जॉब चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मेरे साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं उनका क्या बनेगा। तो जब तक हम सिर्फ यही सोचते रहेंगे, सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे और सोल्यूशन को उस तरह से जिस तरह हमें करना चाहिए उसको ग्रैब नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ती है। तो जब हम सोच देते हैं ना कि अच्छा चलो ठीक है जो हो रहा है हमें उसके साथ ही चलना है और उसको सीखना है, तो जिंदगी हमारी भी आसान रहती है और हम बहुत अच्छे से चीजों को एंजॉय करते हुए चीजों को और ज्यादा अच्छे तरीके से करना शुरू कर दें। जी मैं सुनना। मैम इस टेड टॉक में जो समझ आई मुझे वो ये कि पहले वो जो है टेड टॉकर स्पीकर वो खुद अपनी स्पीच लिखते थे। एआई के आने के बाद वो उससे लिखवाना शुरू हो गए। फिर उनकी जॉब चली गई, फिर उन्होंने इसकी मदद से मतलब इस पे काम करना शुरू किया है कि मदद से, तो वो ज्यादा बेहतर हो गया। बाकी वेपनाइजेशन स्पीड सारी चीजों पे इन्होंने बात की। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप ना ये जो वॉइस क्लोनिंग है ना इस टेक्नोलॉजी इसका पॉजिटिव यूज बता दीजिएगा इसके बाद। और क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें रह गया माइंड में क्वेश्चन। जो सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी, उन्होंने ये कहा कि जो एआई के साथ चलना शुरू हो जाएंगे ना, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम 97 मिलियन आई थिंक उन्होंने बोला था जॉब्स क्रिएट होंगी न्यू। लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए होंगी जो उसके एआई के साथ चलेंगे। जो इसको छोड़ देंगे उनकी तो डेफिनेटली खतरे खतरे में बढ़ जाएंगी। लेकिन इसके साथ चलने वालों के लिए न्यू जॉब्स प्रोड्यूस हो। तो ये मुझे आज की टेड टॉक में सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हम हमेशा से यही पढ़ रहे हैं कि एआई बड़ा खतरनाक है, जॉब्स ले रहा है, लोगों को बेरोजगार कर रहा है। लेकिन इसको सीखने वालों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच लुबना। जी फारूक भाई एक मिनट लुबना मैं इसका जवाब देती हूँ। जी दिस वीडियो एज यूजुअल इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि पहले भी इस तरह की वीडियो थी एक, तो जो मेनली इसमें जो मुख्तलिफ बातें की गई हैं उनमें से एक तो यही है कि आपको एआई को तो लर्न करना ही करना है, ठीक है ना। और इसकी वजह से जॉब्स जा भी रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं। मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली मैंने एक जॉब अपॉर्चुनिटी देखी जिसमें इस्लामाबाद की ट्रिब्यून जो है सोशल मीडिया कंपनी है, उसने जो है वो एक जॉब अनाउंस की थी कि जो ये यानी इंटरव्यूअर हमें उनको चाहिए, ऐसा कोई इंटरव्यूअर चाहिए उनको जो है वो ये पॉडकास्टर चाहिए, ठीक है ना। उसकी ज़ाहिर है बहुत सारी क्वालिटीज़ उन्होंने लिखी थी। तो मकसद ये है कि दिस इज़ वन एग्जांपल कि किस तरह से जो है वो इस तरह की पोजीशंस भी अब जनरल पब्लिक में अनाउंसमेंट आनी शुरू हो गई जिनकी। तो एक तो ये बात, दूसरा ये कि जो इसमें एक रेड फ्लैग है वो ये है कि जिस तरह से सॉरी एटॉमिक कमीशन एक बनाया गया है वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। इसी तरह से एक एआई बेस्ड एटॉमिक कमीशन या एक कमीशन भी बनाना जरूरी है, क्योंकि बहरहाल बाय द टाइम ये स्पीड इतनी फास्ट है एआई की कि खुदा न खास्ता ये जो है वो किसी बड़े इंसानी अलमिया को जन्म न दो। इस वजह से ये मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि ये होना चाहिए, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू नो व्हाट हैपेंड। जैसे कि इसमें ग्राफ दिखाया गया कि अभी तक 2020 तक 2 टाइम्स जो है वो स्पीड थी, बट एआई के आने से वो 10 टाइम्स फास्टर हो गई। एंड आई बिलीव कि दिस विल बी मच मच हायर देन दिस विद इन फ्यू ईयर्स, आई मीन 200%, 300%, क्योंकि वो यू नो मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक कमीशन ऐसा नहीं जो रेगुलेट करे इन सब चीज़ों को। अदरवाइज ये तो ऐसा ही है जैसे एलियंस ने हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे, मतलब इट विल नॉट बी अ फिक्शन, इट विल बी अ रियलिटी इन सम टाइम आई थिंक। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाट आई That's great. रिव्यूड दिस वन। एक्चुअली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये साइबर सिक्योरिटी के साथ ही ये एसोसिएटेड है और साइबर सिक्योरिटी वाले भी इस पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी तक जितने भी एआई एक्सपर्ट्स हैं उनका अपना भी कहना यह है कि हमने एजीआईज को बनाना अब स्टॉप कर दिया है।
उसकी रीजन यही है क्योंकि अब हमें ये लग रहा है कि अगर हम इतनी स्पीड ऑफ डाटा जो है वो फीड करते जाएंगे तो एक टाइम आएगी कि ये हमारे अपने कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारा डाटा इसको डे टू डे बेस पे सेव करते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है अब बहुत सारे एरियाज को स्टॉप कर दिया गया है बनाने को, ताकि हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जाने की बजाय पॉजिटिव साइड पे रह के चीजों को करें। बट नो डाउट जो चीजें ऑलरेडी बन चुकी हैं वो भी किसी ड्रैकुला से कम नहीं है, उनके लिए भी एक साइबर सिक्योरिटी और जो है वो चीजें होनी जरूरी हैं, क्योंकि इससे पहले कि वो इसका पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव साइड पे यूज ज्यादा हो जाए तो फिर चीजें और ज्यादा डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच फरूक भाई फॉर हाईलाइटिंग दिस। जी सलमान भाई, आपका क्या रिव्यू है आज के टेड टॉक के बारे में? सलमान। अनम्यूट योर माइक सलमान, आपकी आवाज नहीं आई। आपके हेडफोन का वो जो माइक है ना वो ब्लू होता है, आज ब्लू नहीं है इसलिए आवाज नहीं आ रही। हेडफोन चेक करें अपने। मैं तब तक मीरब का रिव्यू ले रही हूँ, फिर दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। जी मीरब, क्या सीखा आज की टेड टॉक से आपने? आज की टेड टॉक से हमने ये सीखा कि जो एआई का भी टाइम चल रहा है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमें इससे घबराने की बजाय इससे फ्रेंडली होने की ज़रूरत है, इससे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि एआई ही हमारे आगे फ्यूचर में काम आने वाला है और हमें इसके साथ फ्रेंडली होने की और इससे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि बहुत जी। मिस जवेरिया, आप बताएंगी आपने क्या सीखा आज के टेड टॉक से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नजरिया थोड़ा सा आई डोंट नो कॉन्फ्लिक्ट करेगा या क्या होगा, लेकिन आज की जो टेक टॉक थी वो इट रिमाइंड्स मी द वन आई हैड सीन ड्यूरिंग द पेंडेमिक. So if you will allow me, so can I send the link here in the chat box? श्योर थिंग श्योर थिंग। ये 10 साल पुरानी थी बिल गेट्स की, और जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली इफ यू विल सी द टेक टॉक, तो उसमें उन्होंने सारी जो कमिंग ईयर्स की जो भी उन्होंने जो चीजें बताई हैं उस हवाले से, ये बिल्कुल इस तरह का मुझे टेक टॉक लगा जो बिल्कुल इट्स लाइक सिमिलर जो मैंने कुछ सालों पहले देखा था। तो मेरे हिसाब से तो जो चीजें बताई गई हैं और जो हैं वो ठीक है सारी अपनी जगह, लेकिन इट वाज मोर देन लाइक इंफॉर्मेटिव नॉलेज से ज्यादा इट वाज मोर लाइक वार्निंग, थ्रेटनिंग, अ काइंड ऑफ स्पीच और टॉक। लेकिन इसमें साथ में ये भी है कि जो, क्योंकि उन्होंने तीन बहुत जो एक लाइन मुझे बहुत हिट की है एक्चुअली, वो थी कि we are in a state where we actually don't know what would be the price we have to pay in the future. Some sort of जो वो थी उनकी कि उनको तो बोल दिया गया था कि एक आंख दे दो और उन्होंने दे दी, बट वी आर स्टिल इन अ ब्लाइंड फोल्ड के वी स्टिल डोंट नो। बट उन्होंने फिर भी प्रिडिक्शन देके अपनी ये कही कि ये तीन चीजें हैं जो अभी बहुत फास्ट और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट और वो जो तीनों चीजों का स्पीड और उन्होंने जिक्र किया, तो मेरे हिसाब से तो इट्स काइंड ऑफ अलार्मिंग एंड थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव भी वो थी कि आप इसको इस नजरिए से देखें कि बाद में नहीं कहना कि हमें नहीं पता था, वी डिडंट इन्फॉर्म यू। तो ये मुझे थोड़ा सा इसको ये समझियो मैं बस। थैंक यू सो वेरी मच मिस जवेरिया, थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपको सिर्फ ये पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हमेशा हमें एआई से डरना नहीं है, बट यस एआई आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी करेगा, जिसके लिए आपको बिफोर द टाइम अवेयर रहना बहुत जरूरी है। जी मिस औलत, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया आपको? जी बस मुझे यही समझ आया उन्होंने कि हमें जो है वो एआई के साथ मिलकर काम करना है,
उससे डरना नहीं है, उसके साथ मिलकर चलना है। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें उन 20% लोगों में से नहीं होना चाहिए जो ये सोचते हैं कि उनकी जॉब्स चली गई हैं, बल्कि हमें इसके साथ काम करना चाहिए। दूसरा ये मैं ये कहूंगी कि इससे जो ना जॉब्स आ रही हैं, अब जब मैं स्कूल में जा रही हूँ तो वहाँ देखती हूँ वहाँ क्लास 8 के बच्चे, क्लास 9 के बच्चे इसी के थ्रू अपनी अर्निंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो बच्चे इसको समझ गए हैं, तो इससे वो ये है कि जॉब्स जा नहीं रही है बल्कि और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं बच्चों को। जैसे अभी मेरी बेटी सिर्फ क्लास 9 में है, तो वो ऐसी कैनवा, आपकी जो हम लोग जो रिकॉर्डेड होती है वीडियो यूट्यूब पे वो देखती है, तो उसने जो है वो कैनवा पे सारी चीजें सॉन्ग क्रिएशन वगैरह सीख ली है। तो अब उसने जो है वो, मेरे भाई एक स्कूल में जॉब करते हैं, तो उन्होंने अपना बैनर उससे बनवाया, तो उसकी अर्निंग ही हो गई इस तरीके से। तो बच्चों को सीखने के लिए मिल रहा है, बस ये है कि हमें इस्तेमाल उसका सही तरीके से करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच सोलत। आज मुझे के रियलाइज हो गया कि हम जो यूट्यूब पे कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं उसका हक अदा हो गया कि कोई हमसे सीख ले। बहुत शुक्रिया। ओके, जी सुलेमान भाई, अब बताइएगा क्या सीखा आपने टेड टॉक से आज की। मैम आवाज आ रही है बस। जी बहुत बेहतरीन, अब बताइए। मैम आज की टेक टॉक से यही सीखा है कि एआई जॉब्स जनरेट कर रही है, ना कि उन्हें ख़त्म कर रही है। जो लोग एआई को इस्तेमाल नहीं करेंगे उनकी जॉब्स तो जाती रहेंगी। एआई रिसेंटली मार्केट के अंदर ही है, देखा वीडियो में देख रहा था, उन्होंने वहां पे वर्कर्स को उसी वक्त फारग कर दिया। उन्होंने कहा क्यों, कहते हैं हमें करोड़ों रुपए की मशीनें खरीदनी है ये काम करने के लिए, इसलिए हम आपको जॉब से फारग कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका में भी बताया है कि अमेरिका में एक रोबोटिक डॉग्स कर रहे हैं ताकि वो आगे जंग में लड़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए। और आपको पता है रोबोटिक डॉग्स कितने खतरनाक होते हैं। जी जी। उसका ओवर लेआउट अगर हम देखना चाहें तो वो डॉग दो तरह से फायदे, एक तो वो ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सकता है और जंग में आगे जा सकता है, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ भी बनाएंगे उसे और गोलियों से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ये उसके अंदर अल्टीमेटली डायनामाइट लगा होगा, जब भी वो खराब या फिर वो खराब हो जाएगा तो खुद ब खुद टूट जाएगा। ये भी उनकी जंग में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ये पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही खतरनाक है। और आगे अब एआई के लिहाज से तो एआई खतरनाक नहीं है, अगर लोग उसे खतरनाक बनाएंगे और उसका बुरा इस्तेमाल करेंगे तो एआई खतरनाक हो सकती है, वरना नहीं, एआई कभी भी खतरनाक नहीं हो सकती। जब हम उसके कोड्स वगैरह, उसको डिस्ट्रॉय करने का तरीका अगर वो खराब हो गई है या कोई मशीन वगैरह, फॉर एग्जांपल हम सुपर कंप्यूटर को ही देख लेते हैं। एग्जांपल है कि जब वो खराब हो गया था तो उन्होंने उसका अल्टरनेटिव निकाला हुआ था कि उसके कोड्स वगैरह में टू, ऐसे कोडिंग वगैरह में 0101 यूज होता है बस। लेकिन अगर उसमें अगर 2 या 3 कोई ऐसा, तो प्रोग्राम सारा का सारा खराब हो जाता है। इसलिए उसका अल्टरनेट या एक चीज का होना चाहिए ताकि अगर वो चीज कहीं खराब हो, हमें नुकसान दे, तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकें या हम उसे खत्म कर सकें। थैंक यू। जी बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच सलमान भाई। आपके कंसर्न्स का ऑलरेडी फरूक भाई ने जवाब दिया है कि एआई के साइबर क्राइम को रोकने के लिए एआई साइबर क्राइम होना बहुत जरूरी है, ताकि वो साइबर कंट्रोलिंग फोर्स है वो हर टाइम इस चीज पे अपने आप को 100% अलर्ट रखे। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्ट्रक्शन की तरफ कोई जाता है, तो फिर उसको वहीं पे ही रोक दिया जाए। थैंक यू सो वेरी मच। जी आदम भाई, कुछ कहना है आपको? जी मैम, बस इसी के रिगार्डिंग जो है वो मैं बात थोड़ी सी करना चाह रहा था कि बेसिकली तो ये एक एआई जो है वो मतलब कोई एलियन तो है नहीं ना, ठीक है ना, इट्स अ हम्म सॉफ्टवेयर। तो हम्म ये जो है वो चलाना तो हम लोगों ने ही है, और इसका जो खतरा है या हम लोग जो समझते हैं कि जी ये कोई खतरा हो सकता है या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, इसके थ्रू ये कोई जिन है जो आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स अ थिंग लाइक के ये खुद से जो है ना वो बुरा नहीं है, इसको इसकी यूजेज जो है ना वो बेसिकली बुरी हो या अच्छी हो सकती है, मतलब दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो बस ये एक चीज़ थी। एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी भी गैजेट को यूज करना आपके अपने हाथ में है ना। आप वो गैजेट को आप पॉजिटिव साइड पे यूज कर ले या नेगेटिव साइड पे यूज कर ले, इट्स द सेम थिंग। जावेद भाई आप रह गए और मिसेरम। जी जावेद भाई, क्या सीखा आज के चैप्टर से, क्या समझ में आया? आपका माइक म्यूट है जावेद भाई। जी जी मैम। जावेद।
जी, क्या सीखा आज की टेड टॉक से? मैम आज मेरा क्लास नहीं हुआ ना उसमें। अच्छा, आपने देखी नहीं टेड टॉक? नहीं। बहुत अफसोस की बात है। चलिए क्लास के बाद प्लीज टेड टॉक देख लीजिएगा, फिर रिव्यू बना लें अपने। ठीक है, ठीक। बहुत शुक्रिया। मिस किरम, आपके क्या कहेंगे आज के टेड टॉक के बारे में, क्या सीखा आपने? जी मैंने वो देखा टेड टॉक। तो जैसे हम पहले इंडस्ट्रियल दौर में आए थे, अब हम जो है ना एआई के दौर में आ गए हैं। तो ये एक नई दुनिया है जिसके अपने ही अच्छाइयाँ भी हैं, उसकी अच्छी बुराइयाँ भी हैं साथ साथ। तो हमें इसका फ़ायदा भी और नुकसान भी है। तो जैसे वो स्पीकर बोल रहे थे कि हमें स्पीड को, रिप्लेसमेंट को, और एक और पॉइंट था वो उन सब चीज़ों को फेस, वेपनाइजेशन को फेस करना है। तो हमें जो है ना और जो है ना जी मजबूत होना है और इस चीज़ को सीखना है। और उसके अलावा जो सबसे अच्छी मुझे बात लगी ना वो ये थी कि हमें ना पहले लैग करते थे हम, क्या उसे कहते हैं जी, ह्यूमन कनेक्शंस में। तो अब अगर हमने एआई को कंट्रोल करना है ना, तो हमें फिर पूरी दुनिया को एक होकर एक मोटो पे काम करना है, हमारा एक मकसद है। और हम सब इसमें शामिल होंगे, मिलकर काम करेंगे, सीखेंगे, तो हम इसको फिर जो है अच्छी तरह ओवरकम कर लेंगे। और इससे हमें डरने की या इससे वो होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सीखने की ज़रूरत है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। लेकिन जिस तरह हमने एटॉमिक एनर्जी के लिए कौंसिल बनाई, हर चीज़ बनाई, अब हम एआई से लड़ने के लिए एआई की ही कौंसिल बनाएं, जिसमें जो है हम चीज़ों को देखें और उस पर जो है हम आगे से पहले से करें। लेकिन फिर भी एट द एंड मैं ये सोचती हूँ, मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम पहले भी नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारी ऐसी अननोन चीज़ें हमारे सामने आएंगी जिनको हमने कभी पहले फेस नहीं किया। और उसकी एक बात मुझे वो भी अच्छी लगी कि उसने कहा कि 40 और 50 ईयर्स के जो लोग हैं वो दोबारा स्कूल जाएं और 10 साल के 12 साल के बच्चों के साथ मिलकर काम करें, ताकि जो है ना जी उनका एक्सपीरियंस और बच्चों के जो न्यू आइडियाज़ हैं मिलकर एक नई चीज़ बनाए, तो कोई भी रिटायर नहीं होगा और हम सब जहाँ- मिलकर काम करेंगे। हाँ, और चीज़ें सीखेंगे और इससे जी गिव बैक नहीं करना बल्कि खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। और क्योंकि हमने जो है ना हम ही लीडर हैं और हम ही सुप्रीम हैं। सही थैंक हो यू। गया मूसा भाई, मुझे लगता है जैकब साहब के शरेहान से मिल लिया उन्होंने। जी, थैंक यू सो वेरी मच मिस इरम आप। ओके, अमर भाई आपका हैंड रेस था, आपको कुछ कहना है? इन द मीन टाइम आई रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स प्लीज क्रिएट द स्टोरी पोस्ट एंड अपलोड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपके जो डे 4 के टास्क है, सॉरी वीक 4 के टास्क मैंने शेयर किए हैं, तो आप 5 मिनट में स्टोरी पोस्ट क्रिएट कर लीजिए, फिर हम एक और टास्क करेंगे और आपके विद इन द क्लास टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। जी फारूक भाई। जी अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि बात आई कि बहुत से लोग होते हैं ना जिनकी बैड होती हैं, बैड कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर जैसे कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ वायरसेस हैं जो कि अपलोड किए जाते हैं और प्रोग्रामिंग्स को जो खराब करते हैं। ठीक है ना, इस तरह की इश्यूज से भी जो है ना वो ये बात आ सकती है कि जी कोई एआई बेस्ड इस तरह के चैटबॉट से रोबोटिक्स को जन्म दिए और फिर वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जो कि ह्यूमैनिटी के लिए एक सेटबैक हो। तो ये एक चीज हो सकती है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि कोई ऐसी इंटरनेशनल बॉडी हो जो इसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करे। नहीं ये आगे जब और मजीद आगे बढ़ेगी बात, आज नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स, तो दिस माइट बी हार्मफुल। बिल्कुल ऐसा ही है और आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो बहुत सारी चीजें जो है वो टाइम के साथ साथ अगर चेंज नहीं की या उनका हमने कोई एंटी नोड या एंटीडोट नहीं बनाया तो फिर चीजें मुश्किल होती जाएंगी। और ये बात सही है, जिसमें सबसे ज्यादा आपने हाईलाइट किया है साइबर एआई, साइबर के लिए, ताकि एआई के लिए भी जो है वो डिस्ट्रक्शन की से पहले उनकी जो फोर्सेज है वो उस चीज को मेक श्योर कर लेंगे, वो खत्म हो सके। थैंक यू सो वेरी मच। जी मिश्रा, आपके मैं की टेक अवे चाहूंगी लास्टली कि आपने क्या सीखा टेड टॉक से, क्या समझ में आया? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी, वालेकुम। मैंने यही सीखा है कि एआई का सीखना हमारे सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन हमें ना होगी, नॉलेज नहीं होगा तो हम लोग कैसे कोप अप कर सकेंगे ना। हम लोग किसी चीज़ का सामना नहीं कर सकेंगे, बेशक वो अच्छी चीज़ हो, बेशक वो बुरी चीज़ हो। तो जैसे उन्होंने कहा कि हमारी मेरी जॉब गई थी, जॉब जाने के बाद उन्होंने कोशिश की, इसको सीखा तो ही उनको जॉब मिली और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो अगर आप लोग नहीं सीखेंगे, हमें इसका इल्म नहीं होगा, तो हम इसके अच्छे फ़ायदे भी नहीं उठा सकेंगे और इसका जो बुरा नुकसान है, उससे भी बच नहीं सकेंगे। तो इसका सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना।
बहुत शुक्रिया मिस चित्रा। Okay, participants, please show me thumbs up. How many participants have completed the story post task? क्योंकि मुझे एक नया टास्क इंट्रोड्यूस करवाना है। आप मुझे बताइएगा कि कितने पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो स्टोरी पोस्ट का टास्क कंप्लीट कर दिया। मिस सोलत हैज डन ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मिस सोलत तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो गया, फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। मिस ओके मैंने भी डन। सिर्फ क्रिएट करी है, पोस्ट नहीं करी है। मैं पोस्ट क्लास के बाद कर ओके गुड हो गया, ठीक है, बस क्रिएट होना भी जरूरी था। मैं अभी हो रहा है। ओके कर आसिफ गोइंग ऑन। ओके मिस गुलशान हैज डन, वेरी नाइस। विशाल बस पोस्ट करिए। ओके कर क्रिएट हो गया, गुड। परप्लेक्सिटी बना रहा है। ओके मिसिरम सॉरी, जरा शफीक टॉपिक भाई, रिपीट हेलो कर देंगे? भाई। अच्छा, मैं टॉपिक आपके लिए शेयर कर देती हूँ पास। आज का हमारा स्टोरी पोस्ट का टॉपिक है एआई's रोल इन combating क्लाइमेट चेंज। मैं ये टास्क शेयर करी जूम चैट में ताकि आप वहां से देख लीजिए। Okay, Lubna done on the way. Okay, शफीक भाई, that's great. ओके पार्टिसिपेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि आज एक नया टास्क आपके साथ शेयर हुआ है, कोडिंग विद एआई। अब ये बहुत ही मजे का टास्क है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। शायद आप लोगों में से बहुत सारे जो कोडर्स हैं वो जाग जाए, प्रोग्रामर्स जाग जाए बिकॉज ऑफ दिस एआई। पहले ये होता था हमारे अहमद भाई मुस्तफा के लिए बहुत अच्छी चीज है, ईशान के लिए और दूसरी हमारी नीरव जो है, इन सब के लिए। कोडिंग में हमें जो है वो सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती थी। HTML आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, आपको PHP आनी चाहिए, आपको मतलब बहुत सारी C++ लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। ये सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस ना वो आपको खुद याद करनी पड़ती थी। और बेचारे प्रोग्रामर कोडर्स एक एक फुल स्टॉप भी गलत लगा देते थे, या एक लेटर कैपिटल लिखना होता था उसको स्मॉल लिख देते थे, पूरा कोड खराब हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब ये सारी लैंग्वेजेस याद कर ली है आपकी जगह पे एआई ने। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, अच्छी इंस्ट्रक्शंस देनी है और आपके लिए बना बनाया आपकी सारी चीजें तैयार आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम आज सबसे पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर इस पूरी बुक में आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर की जाएंगी और 2 से 3 डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए हम कोडिंग करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो कोडिंग करने जा रहे हैं वो claude.ai से कोडिंग करेंगे। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप सबके सामने परफॉर्म करूंगी। इट जस्ट टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट लगेंगे मुझे टास्क परफॉर्म करने में। आफ्टर 5 मिनट्स यू गाइस हैव टू जस्ट गो टू योर स्क्रीन और फिर आप सबने वन बाय वन अपना अपना काम कंप्लीट करना है। फिर मेरी क्लास में ही मेक श्योर करके जाना है कि हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, ताकि हम फिर नेक्स्ट क्लास में इस टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके। आई होप माई स्क्रीन इज शेयर फॉर एवरीवन, सबके लिए स्क्रीन शेयर होगी। तो ओके, अच्छा, जिस तरह से हम कोई भी एआई टूल यूज करते हैं तो हमें सबसे पहले जो है उसको लॉग इन करना पड़ता है। इसी तरह से आपने इस वाले भी जो हमारे पास ये वाला एआई टूल है इसको भी आपने पहले लॉग इन करना। ठीक है, तो इसका नाम है claude.ai। अच्छा, माधव के साथ इसके कुछ जो आइकन है वो कोविड वायरस से मिलता जुलता है। ठीक है, ओके जी। अभी आपको जैसे स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना ये ऑरेंज कलर का, अब ये डायरेक्टली ओपन हो गया, मैंने डायरेक्ट ओपन नहीं करना था। ओके, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, गूगल भी यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आप चाहें आप उसको यूज कर लीजिएगा। इस तरह से आप claude.ai लिखेंगे तो आपके सामने ये पहला लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, claude.ai इस पे क्लिक करेंगे। आपने जैसे क्लिक किया तो आपके सामने आ जाएगा कि आप इसको पहले साइन अप करेंगे। साइन अप करेंगे, साइन अप के साथ ही वो आपसे कहेगा कि आप कोई से 3 नीश जो है, 3 स्पेसिफिक जो टॉपिक्स है वो सेलेक्ट कर लें। कोडिंग विद जो क्लॉड है वो तो लाजमी करना है, उसके अलावा 2 आपकी अपनी चॉइसेस है। 3 आपने करना है, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते, 3 से कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 जो आपकी इंटरेस्ट है वो उसको पिक कर लीजिए। पिक करने के बाद वो आपको कहेगा कंटिन्यू, आप कंटिन्यू कर देंगे और इसके बाद फिर ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। जो नाम आपने जिस ईमेल के साथ उसको कनेक्ट किया होगा वही नाम आपको यहाँ पे शो करके इवनिंग
मरियम जुल्फकार लिखा है तो आपको अपना अपना नाम आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इस इंटरफेस में क्या होता है कि सबसे पहले अपग्रेड टू कनेक्ट टूल्स टू क्लॉड। वाह, अच्छा जी। यहाँ पे आप कोई भी प्रोफाइल पिक्चर, कोई पिक्चर अपलोड करना चाह रहे हैं, कोई स्क्रीनशॉट अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इस प्लस साइन पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आप जो है वो क्लॉड का जो वर्जन यूज कर रहे हैं उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं, इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। देन आपके पास जी, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लाउड का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं। ये सोनेट 4 ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास अवेलेबल है और ये फ्री में अवेलेबल है, इसका कोई पेड चीजें अपने पे नहीं करनी। ठीक है, अभी हमने बनाना है आज कैलकुलेटर, जो कि हमारा टास्क है कोडिंग का, और हमने बनाना है बेसिक कैलकुलेटर ऐप दैट कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे claude.ai में। लास्टली एक यहाँ पे सेंटेंस ऐड करेंगे, मेक in one HTML it is and it's intern। ओके, अब ये आपके लिए क्या करेगा, ये आपके लिए आपका जो है वो कैलकुलेटर बनाना शुरू कर देगा। आपने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखा, राइट साइड में देखें तो आपको ये सारी की सारी कोडिंग नजर आ रही है जो कि उस कैलकुलेटर के पैकेट पे की जा रही है, और थोड़ी देर में आपको प्रीव्यू में दिखाया जाएगा कि आपका कैलकुलेटर डिजाइन हो चुका है। सी, ये आपके कैलकुलेटर के सारे ऑपरेशन उसने खुद बनाए और सारा काम उसने खुद कर दिया। अभी 5 मिनट के बाद हमारा कैलकुलेटर हमारे सामने होगा, लुक लाइक दिस। ये कैलकुलेटर बन गया हमारा। ठीक हो गया। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये कैलकुलेटर फंक्शनल भी है या नहीं है। ओके, यस, दैट्स ग्रेट, तो काम करता है भाई। $56 डिवाइड बाय 8 कर सब्ट्रैक्ट 7 सब्ट्रैक्शन 6 ओके 5 प्लस 6 ओके। अच्छा, यहाँ तक तो ये बहुत ही बेसिक और सिंपल से कैलकुलेटर डिजाइन हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको यहाँ पब्लिश साइन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये जो टॉप राइट कॉर्नर में आपको शो हो रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ये पब्लिश एंड कॉपी लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। इस लिंक को हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे इस लिंक को कॉपी करना है। लिंक आपका पहले कॉपी नहीं हुआ, लिंक आपका यहाँ जाके कॉपी होगा जब लास्ट पे वो आपको कहेगा कॉपी लिंक का ऑप्शन देगा। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर दिया तो वापस आ जाएंगे हम अपने फेसबुक पे। अच्छा, ये टास्क दोनों, ये वाले टास्क सिर्फ फेसबुक और लिंक्डइन के लिए है, यूट्यूब पे भी अपलोड नहीं होंगे, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड नहीं होंगे, और ये टास्क सारे के सारे आपके अपलोड होंगे सिर्फ फेसबुक पे और आपके लिंक्डइन पे। ठीक है, जैसे ही हम फेसबुक पे आते हैं तो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन खुद बनवा लेनी है चैट जीपीटी से, उसको बताना है। अभी मैं आपके सामने डिस्क्रिप्शन बना के बता देती हूँ आपको। ठीक है, और फिर आपने ऐसी ही डिस्क्रिप्शन आपने चैट जीपीटी से बनवा लेनी है। यहाँ पे हमने क्लिक किया व्हाट्स ऑन योर माइंड पे, यहाँ हम जैसे लिंक को पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रीव्यू है वो उसका खुद ही आ जाएगा, हमें उसके प्रीव्यू का स्क्रीनशॉट या कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सी, कि हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर यहाँ पे आ गया। अच्छा, हमने कोडिंग नहीं किसी को भी शो करनी कि हमने कोडिंग में किया क्या है और कोडिंग आई कैसे। हमारा काम है सिर्फ लिंक देना ताकि सामने वाला हमारे कैलकुलेटर को यूज कर सके, और हम ऊपर लिखेंगे पूरी एक डिस्क्रिप्शन, जो कि हम यहाँ पे वापस आएंगे चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी से बोलेंगे कि मेरे लिए एक डिस्क्रिप्शन बना दो अच्छी सी। वी हैव 30 मिनट्स मोर, हमारे पास पूरा आधा घंटा बाकी है। आप लोग तसल्ली से अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है,
तो ये मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया इसको, कि मैंने इसको claude.ai से, मैंने बताना है कि मैंने claude.ai से बनवाया है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिखा, और साथ ही मैं यहाँ लिख दूंगी, स्टार्ट में आ जाइएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा day 1, कोडिंग के अकॉर्डिंग day 1। ठीक है, या सिर्फ टास्क 1 लिख दें और कोडिंग विद AI। ठीक है, क्योंकि कोडिंग के टास्क इस बुक के अंदर 25 है जो आपके लिए ऐड किए गए हैं, और ये स्पेशली अभी हमने जो है वो इस बुक में आपके लिए ही ऐड किया, और इससे पहले जो हमने किसी भी पार्टिसिपेंट को प्रॉबेबली, हाँ, एक बैच और था जिनको ये बुक सेपरेट करवाई गई थी, लेकिन आपकी बुक के साथ इस बुक को मर्ज कर दिया गया। प्लीज give me description for social media posting. That's it. Yes. अभी आपको पूरी उसने डिस्क्रिप्शन बना के दे दी, इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे, और जो हमने पहले से लिंक कॉपी करके ऐड किया हुआ है ना, उस लिंक के यहाँ पे हम इस डिस्क्रिप्शन को ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, और यहाँ से अब जो हमें एक्स्ट्रा है हमारे पास राइटअप, उसको हमें नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये जो हैशटैग है, हैशटैग से पहले वाला ये वाली लाइन नहीं चाहिए। देन हम ऐसा ऐसा ऊपर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो स्टाइलिक्स हैं ये भी रिमूव कर देंगे क्योंकि नहीं चाहिए। ये स्टाइलिक्स सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसके लिए वैलिड है, हमारे लिए वैलिड नहीं है। अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड के स्टाइलिक्स है वो उसने बुलेट पॉइंट्स में के लिए लगाए हुए, उसको लगे रहने दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपनी डे टू डे जितनी भी डिस्क्रिप्शंस हैं वो आप चैट जीपीटी से बनवा के अपलोड करते जाएंगे, और आपके डेली जो कोडिंग के टास्क होंगे अब से, आज से शुरू हो जाएंगे, और वो आपने डेली इसी तरह से ऐड करते रहना। ठीक है, ये सेम आपने कॉपी पेस्ट करनी है अपने लिंक्डइन पे, और लिंक्डइन के अलावा और कहीं पे भी ये पोस्ट नहीं हो सकता। लिंक्डइन और फेसबुक पे ही ये आपका टास्क पोस्ट होगा, बाकी कहीं पे नहीं होगा। तो इसलिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए आप जो है वो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, और आप पोस्ट पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये पोस्ट हो जाएगा, और ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं होगा इसलिए, और इंस्टाग्राम के जो लिंक्स है वो अप्रोप्रिएट। एंड दिस इज इट, यहाँ तक था आपका कोडिंग का। अब आप प्लीज सब अपने अपने जो है क्लाउड को यूज कीजिएगा और अपने टास्क कंप्लीट करना शुरू कीजिएगा। प्रॉम्प्ट मैं आप सबके लिए दोबारा से जूम चैट में शेयर कर देती हूँ, पूरा प्रॉम्प्ट शेयर करूंगी, जिसके लास्ट में मैंने जो सेंटेंस था वो ऐड किया था उसके साथ ही। लीडिंग क्लास फॉर 10 मिनट्स, नीड अ ब्रेक। ओके आदम भाई, इंटरनेट स्लो है, जूम वीडियो के साथ आप कंप्लीट नहीं हो पा रहे। ठीक है, आप अपनी वीडियो कंप्लीट बंद कर सकते हैं प्लीज। मिस प्लीज राइट द एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट। जी बिल्कुल फारूक भाई, मैं प्रॉम्प्ट शेयर कर रही, एक मिनट। कॉपी पेस्ट। Okay guys, just go to your plot.ai and then paste this prompt and see the magic of this coding with AI. जी मिस रुबना। मिस ये जो कैलकुलेटर यहाँ पे बना है ये वर्किंग कैलकुलेटर होता है ना, इसको हम यूज कर सकते हैं ना बाद में भी? नहीं 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 नहीं, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से पूछ रही हैं कि इसको आप अपने सेलफोन में ऐड करके और इसको यूज करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक वेब बेस्ड कैलकुलेटर बना है, लाइक आप इसके लिंक पे क्लिक करेंगे और आप इसके लिंक के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं। ये और इस ऐप लिंक नहीं है जिस तरह से आपके सेलफोन की एप्स है। इस लिंक को अगर हम सपोज व्हाट्सएप स्टेटस पे पेस्ट करते हैं तो वहां से लिंक पे क्लिक करके हम इसको यूज कर सकते हैं? हो सकता है, बिल्कुल लिंक क्लिकेबल होगा। ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ, मतलब आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आप दूसरों के लिए अनाउंस करना चाहते हैं तो आप अपने इसको पेस्ट करके बता सकते हैं कि मैंने ये कैलकुलेटर क्रिएट किया है, तो कोई भी इसको यूज करना चाहे तो कर सकता है। जी जावेद भाई। हाँ मैम,
इसका एक तो लिंक शेयर कर दें हमारे पास, और दूसरा जो है मैम वो उसकी तरह एक बार वो बता देंगे 1 मिनट के लिए बस, जहाँ से इसका लिंक जो है कॉपी करना है। मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। मैं आप अपनी फिर स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा ना, फिर मैं आपको बता दूंगी आपने कॉपी कहाँ से करना है। ठीक है, अच्छा मैम मैं कर देता हूँ। 1 मिनट, पहले आप claude.ai खोल लें और उसके बाद आप ये काम करें। नसीमुल्लाह भाई आप यहाँ पे हैं? लेफ्ट में सही हो गया। मैं जूम चैट में शेयर कर रही हूँ लिंक। जावेद भाई उस लिंक पे क्लिक करें, क्लॉड ओपन हो जाएगा आपका। जावेद भाई उधर आइएगा अपने जूम पे, जूम चैट में देखिए मैंने लिंक शेयर किया आपको। हाँ मैम इसको लिंक ये वाली आपने एक एक टैब शेयर की हुई है, सारी टैब शेयर करें ना नीचे से। अपने गूगल क्रोम खोल लें, गूगल क्रोम खोल लें, यहीं से डायरेक्ट मैं आपको गाइड करती रहती हूँ। ठीक है मैम। हाँ अब यहाँ पे लिखे क्लॉड, CLA CLAUDE, वो आ गया ऊपर, पहले लिंक पे क्लिक कर दें। मैम ये वाला। नीचे 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 देखें, हाँ इस पे क्लिक कर दें। ओके ओके, अब यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करें। हाँ, अपने नेम पे क्लिक करके कंटिन्यू, कंटिन्यू, फिर यस आई कंफर्म, और फिर ये तीनों पे लगा दें चेक, तीनों पे कंटिन्यू। फ्री वाला मैम। फ्री प्लान, ओके हो गया। अब जो मैंने मैम जूम क्रोम क्या चैट करना में हाँ ठीक हो गया। वो जो ऑरेंज कलर का प्लस साइन है ना लेफ्ट साइड पे, देखें उस पे क्लिक करें। ऑरेंज कलर का। हाँ ये जबरदस्त, ये देखिए उसमें लिख दिया ना इवनिंग जावेद अली, उसी तरह जिस तरह मुझे लिख रहा था। अब जो मैंने जूम पे प्रॉम्प्ट भेजा है ना उसको कॉपी करके पेस्ट करें यहाँ पे। मैम कहाँ से कि उसको कॉपी करेंगे? जूम, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। यहाँ से ये। जी जावेद भाई जूम चैट में देखिए मैंने मैसेज भेजा है एक, उस मैसेज को कॉपी करके यहाँ पे ऐड करें। मैम इसमें यहाँ पर ना। जी जी, जूम चैट में आइए, वहां पे एक मैसेज है उसको कॉपी करके और यहाँ पे ऐड कर दें। मैम यहाँ तो कोई मैसेज नहीं नजर आ रहा, ये वाला है क्या? बन गया, फेसबुक डन, सौलत का भी हो गया, एरम का भी हो गया, गुड हो गया। जावेद भाई जब तक आप कॉपी करके पेस्ट नहीं करते ना मुझे नजर नहीं आएगा आप किस मैसेज की बात कर रहे हैं, इसलिए पहले आप पेस्ट करेंगे तो मुझे नजर आएगा। अब देखिए। मिस ठीक है मरियम, मैम। जी बिल्कुल सही हो गया। अब एंटर प्रेस कर दें या ये ऑरेंज एरो पे क्लिक कर दें, अब ये कोड बनाना शुरू कर देगा आपका। जी मिस लुप्ता आपको कुछ कहना है? जी मैम, मैं इसका ये अकाउंट पे क्लिक किया मैंने, तो वो अपना फोन नंबर वेरीफाई करना है कह रहे। फोन नंबर आप दे सकते हैं इसको अपना? नहीं देने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट है जब मैं आपका कराती हूँ। 1 मिनट बस ये इनका हो जाए भाई का, फिर आपकी स्क्रीन शेयर करा। ओके मिसरम, मैं आपको जो है जबरदस्त विशाल वेरी नाइस, लिंक्डइन पे भी पोस्ट करना है और अपने फेसबुक पे भी पोस्ट करना है, ठीक है? मैम ये हो गया।
हो गया बस। अब इसको चेक करें कि ये वेरीफाई हो रहा है, प्लस करके देखें दो नंबर्स को। इसको ये जो लिखा है एक्सेप्ट ऑल कुकीज, इस पे एक्सेप्ट कर पे क्लिक करें ना पहले। नीचे 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 आए, नीचे आए ना जावेद भाई। मैम यहाँ पर यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करें, वो मैंने रेड मार्क किया वहां पे। जी फारूक सलीम भाई। हाँ जी, ऊपर ऊपर थोड़ा ऊपर। जावेद भाई, अब आप दो नंबर को प्लस करके देखें, दो नंबर को माइनस करके देखें, क्या ये आंसर सही दे रहा है? मैम एक सेकंड। ये आल कुकीज पे करना है मैम। जी जी, इसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। ओके, अब अब आप क्लिक करें 4, यहाँ पर 2 को क्लिक करें। हाँ, 2 को क्लिक करें ना, किसी नंबर पे क्लिक करें। हाँ ठीक है 2 हो गया हाँ, मैम। प्लस, ठीक है प्लस हो गया। हाँ 6, ठीक है 6 हो गया। इक्वल को प्रेस करें अब। हाँ ठीक हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेटर चल रहा है। पब्लिश पे क्लिक कर दें। ठीक है अब दोबारा से पब्लिश एंड कॉपी लिंक पे क्लिक करें। ठीक है मैम। कोई भी 3 चूज कर सकते हैं जी मिस सवेरिया, कोई सी भी 3। अब कॉपी कॉपी लिंक लिंक कर ले करें। मैम। जी जी, कॉपी लिंक कर लो। अब इसको फेसबुक पे जाके पेस्ट करें और फिर डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने चैट जीपीटी से लिखवाई थी वैसे लिखवानी चैट जीपीटी और उसको पेस्ट कर दें। डिस्क्रिप्शन के बगैर कोई टास्क अपलोड नहीं होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा जावेद भाई। आपने टैग करना है, ठीक। जी फारूक सलीम भाई। आप म्यूटेड है फारूक भाई। मेरे पास एक्चुअली ये वो गूगल का अकाउंट पूछ तो रहा है, लेकिन उसके बाद मैंने जब उसको दे दिया तो फिर वो कंटिन्यूसली उसको सर्च ही कर रहा है और उसको अभी तक लिया नहीं सोच से। मैं तो रिफ्रेश किया। लेट मी चेक फॉर स्क्रीन शेयर व्हाई। करें। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दें मुझे। अहमद भाई, आर यू डन? पोस्टिंग, ओके, कर हो गया। अहमद भाई डोंट फॉरगेट टू टैग मी। आपने टैग करना है अपने हर टास्क में। ओके हो गया जी। क्लाउड वाली स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा फारूक भाई। आप वो आ रहे हैं आपका, चूज करें, फारूक सलीम को क्लिक करें। ओके, आपकी वो विंडो फिर घूम गई जहाँ पे वो कंटिन्यू की बात देखिए करेगा। ये इसी तरह से ना। आई थिंक आपका इंटरनेट लैग कर रहा है फारूक भाई। आप कोशिश करें कि अगर जो टैब्स नहीं चाहिए, नेसेसरी है, उनको बंद कर दें, तो फिर ये जल्दी हो जाएगा। जी जी, लेट मी चेक। हाँ प्लीज। Do we have to download? No, Miss Saveria, there's no need to download it. Or simply publish. Yes, simply publish it. From by click on the publish and you will get the link, or by clicking on copy link. जी मिस रुपना, अपने स्क्रीन शेयर कीजिएगा और फेसबुक का लिंक मिल जबरदस्त मिस। ओके, आज से ही सारे मसरूफ लग रहे हैं मुझे। जी क्लॉड डॉट एआई, पहले पहले लिंक पे क्लिक कर दें। मैं सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे।
ये आपको क्यों कह रहा है भाई? आई कन्फर्म दैट आप नीचे वाले पे क्लिक करें, उस पे चेक लगाएं। हाँ, आपने इसको पहले अपना ईमेल दिया था मिस? जी मैडम दिया था। अच्छा, गूगल मोबाइल में साइन दे अप, दे, कोई साइन अप मसला नहीं है मोबाइल। दे दो मोबाइल नंबर। हाँ दे दे, यहाँ से चेंज करके पाकिस्तान पे आना है। ओके, नहीं 0 नहीं, 92 से ऐड करते हैं नंबर को। 92। हाँ 92 फिर 32, हाँ ये सही है। सेंड सेंड कर। वेरिफिकेशन कोड, हाँ ये आपको वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। फोन नंबर टेम्पररी ब्लॉक, ये क्या बात है? मैं तो यूज कर रही इसको बंद करें जरा, दोबारा से इसको बंद कीजिएगा। अब दोबारा क्लाउड खोलें। एक मिनट, पहला लिंक खोलें। यही वाला मैम। जी जी, हो गया आपसे फाइन। ये क्यों दे रहा है आपको वेरिफिकेशन? ये नहीं देता नंबर की वेरिफिकेशन। मिस मेरे भी यही आ रहा है। चले आपका और शुक्र मेरे है पास भी मिस यही है, स्क्रीन आ सिर्फ रही मेरा मसला नहीं आ रहा, किसी और का भी। मुझे लगता है सिर्फ सारे मसले मेरे साथ ही। आपका आपका और मिस गुलशान का हमेशा सिमिलर चलता है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि क्या नो, आई एम कॉम्प्लिकेटेड फेसिंग द सेम इशू। मैम यहाँ ओ पे फरूक एज भाई का इधर ओह क्या आ गया? गुड। विशाल क्या क्या? मैम यहाँ पे एज का आया था, हमने उस पर टिक किया था तो वो हो गया। उसके बाद तो यहाँ मैम पे वी मैंने लिखा भी था एंटर्ड द यही 18 किया से है, above। मैंने भी ठीक चमेली कह किया रही है तो हो मैंने भी गया है। नंबर एंटर किया। भाई आप लोगों से बहुत हाई सिक्योरिटी चाहिए एआई को, इसलिए वो आपके नंबर्स भी ले है ना। नॉर्मली अभी मैंने आपके सामने नहीं मिस, जावेद भाई नंबर तो कहता नहीं मांग रहा, है। हमसे तो नहीं मांगा नंबर। हमने तो हाँ बस सौरभ ये लॉगिन तो यकीन, सिंपल करने के ना बनाया लिए है। सौरभ दिया है। आप पे यकीन है, ना सौरभ आप पे यकीन है एआई का। मिस लुबना, मिस गुलशान, सलेमान, मिस जवेदिया, फरूक भाई अंडर रेड जोन है इस वजह से। मैडम हमारे ऊपर तो अच्छा, किसी को भी यकीन नहीं है ना, हर ऐप में प्रॉब्लम आ रही होती है, कभी 11 कोई लैब्स में कभी इसमें। कोई दूसरा नंबर ट्राई करके देखें। मैडम दूसरी ईमेल से करती हूँ इसको। हाँ ये भी कोशिश करके देख लें, ईमेल चेंज करके। यार ब्राउजर चेंज करके देखो ना रुकना, इसको जी बंद मैम, करके पे ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट पे चेंज कर। चेंज। एक फारूक भाई आप भी ब्राउजर चेंज करके देखें, शायद ये प्रॉब्लम ना आए। मतलब मैम ये गूगल की दूसरा बजाय ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज करें। जी जी ठीक है। जी जी। अच्छा, आजम भाई आप वापस आ गए, 10 मिनट की ब्रेक आधे घंटे की होगी, अब प्लीज मुझे बता दें। मैम आप बताएं। कंटिन्यू करें। मैम लाइट चली गई है जिसकी वजह से कैमरा ऑफ रहेगा। जी इशाल, जो हुक्म। जी मैम वापस आ गया मैं। जबरदस्त हो गया। अब claude.ai खोलें और क्लॉड के साथ साथ ये टास्क कंप्लीट करें अपना, जैसे जैसे मैं सपना कर रही है वैसे वैसे। मैम इधर क्लिक करूँ या इसको भी होने दूं? ये अभी क्योंकि ये होने दूसरी नहीं। विंडो खुल गई है। मैम मैंने टास्क कर लिया है, वो फेसबुक के ऊपर पोस्ट हुआ हुआ है, और अभी मैं जो है वो उसको लिंक्डइन के ऊपर भी पोस्ट कर रहा हूँ। जबरदस्त, ठीक है आजम भाई, ठीक हो। मैं सपना आपका इंटरनेट काफी स्लो है। जी मैम, आपने पहले भी इसी तरह क्लिक किया था? इस पे कर दिया था, ये जो विंडो ओपन हुई थी। अच्छा जी ये मिस वाली। लैला। मैम मैं ऐसे कोशिश कर रही थी कि ये जो इनको मसाइल आ रहे हैं, मैं चैट जीपीटी पे साथ साथ लिख रही थी, तो वो कह रहे थे कि कुछ लोग या तो बार बार मतलब अ, मत ओपन करने की कोशिश करते हैं, यानी ईमेल डालते हैं, हो नहीं रहा होता। तो एक तो जो लोग यानी जो भी ये क्लाउड प्रोवाइड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो वो डाउट में आ जाते हैं कि कहीं 13 साल से कम उम्र नहीं है, जो इधर लिखा हुआ है 13 साल कम उम्र नहीं है, ये यकीनी बनाते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि एक पर्सन एक एक क्लाउड ही बनाए, क्योंकि जब वो फोन नंबर देगा तो उसके लिए जो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है मैम। तीसरा ये था कि उनकी वेरिफिकेशन फोन से हो जाएगी, और वो एक पर्सन है ये भी वेरीफाई इससे वो कर सकेंगे। इस तरह की कोई बातें अच्छा उन्होंने बताई हुई हैं। जी, समझा गया, okay।
मिस लुबना थोड़ा स्क्रॉल करें, नीचे क्या आ रहा है? और See learn more. और मैम वो ये भी कह रहे हैं कि ये हर बंदे से वेरिफिकेशन नहीं मांगी जाएगी, कुछ पे उनको जो मतलब बार बार करने की कोशिश करते हैं और जिनका नहीं हो रहा होता, मैं कुछ लोगों के साथ ये ऑप्शन आ सकती है। सही हो गया, ठीक हो गया। ऊपर जाइएगा मिस लुबना, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें जरा। वो चला गया गेट स्टार्टेड। हाँ ये देखो रेड ब्लैक कलर का आता है ना, गेट स्टार्टेड, उस पे क्लिक करें। गेट स्टार्टेड, ये तो नहीं लग रहा, कहाँ लिखा हुआ? ये FAQ के साथ आ रहा है ना, फास्टली आस्क टॉप क्वेश्चंस। राइट कॉर्नर पे देखें। हाँ ये ओके देखो, अभी किसी हाईलाइट की थी, थैंक यू सो वेरी मच। मैम यहाँ पे क्लिक करें। मैम एक मिनट मिस लुबना, लाला मिस लुबना, मुझे लग रहा है आपका इंटरनेट बहुत स्लो है, हम किसी और पे चलते हैं, ठीक उनका है मैम, देखें। मैं इसको बाद में फिर ट्राई करूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी फारूक सलीम भाई, आप शेयर करेंगे? दूसरे ब्राउजर से हो गया। मैम आई हैव टू लीव फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास तो हो गई शफीक भाई। ओके, अगर आपके टास्क हो गया तो आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू मेरा, डन पोस्टिंग है उसका, जबरदस्त। दूसरे जी फारूक भाई, ब्राउजर से भी नहीं हो पा रहा है, वहां भी सेम इशू आ रहा है, दूसरे ब्राउजर टास्क में भी सेम कंप्लीटेड है, इशू आ रहा है, ये क्या करूं? आप स्क्रीन शेयर करें। जी, और एक ही टास्क रह गया सॉन्ग क्रिएशन का, ठीक है? जैसे कि वीक देखिए 3 के डे 5 में भी सॉन्ग क्रिएशन नहीं करना, तो आप इसका कर सकते हैं। अच्छा फारूक भाई, अपना सेल नंबर दें। क्या सेल नंबर से वेरीफाई नहीं कर रहा आपको? नहीं, सेल नंबर मैंने दिया नहीं अभी, मैं दे दूं उसमें? तो फिर दे देना। हाँ दे दे, कोई मसला नहीं है, ये आपको कोई तंग नहीं करेगा, ना ही कुछ कहेगा। जी मिस लैला, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं वैसे अपनी उसी बात में ही बात ऐड करना चाह रही थी कि मैंने हालांकि क्लाउड इसी ऐप को 3 जगह से मैंने लॉगिन किया हुआ है और बड़े आराम से फ्लो में एक मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था मेरा। मैंने आप बताए नहीं ना, ताकि काम खराब ना हो। मिस गुलशान, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हेलो मैम। जी जी। मैम ये फेसबुक पे तो सब हो गया मेरा क्लियर, लेकिन मैम जो आपने अभी एडिट किया था ना, उसको जो प्रॉम्प्ट लिखना था, हम्म। हाँ तो उसमें क्या वो आप मुझे शेयर कर देंगे क्या? उस प्रॉम्प्ट में आपने वो जो ऊपर बुक का है ना लिखा हुआ, आई क्रिएटेड दिस कैलकुलेटर ऐप बाय यूजिंग क्लॉड.ai, बस इतना लिख के, और फिर मैं अपनी वाली डिस्क्रिप्शन आपको भेज देती हूँ, वही डिस्क्रिप्शन लगाना। मैं हाँ इस भेज दो वेरिफिकेशन मैम। की होती है कि नहीं होती है? आपको वो कह रहा है टेम्परेरी ब्लॉक है, 92 की जगह 0 ऐड करके देखें, हो सकता है 92 की वजह से वो कह रहा हो। अब दोबारा सेंड वेरिफिकेशन कोड, आपने क्या फिर भी ये सेम दे रहे हैं? मुझसे पूछ रही हैं? जी जी। हाँ जी, वही आ रहा है कि फोन नंबर टेम्परेरी के ब्लॉक। पास कोई दूसरा नंबर है, उसको ऐड करके देखें। जावेद भाई, मैं आपको व्हाट्सएप कर दी डिस्क्रिप्शन, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ऊपर से और नीचे से आखिरी सेंटेंस को डिलीट कर लीजिएगा, अच्छा मैम, एज ठीक इट है इज ठीक। नहीं रख। जी मैंने भेज दिया। ठीक है मैम, शुक्रिया। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि क्लॉड का एक ही दिन में इशू भी आ जाता है, तो आप कल दिन में करके देखिएगा, ठीक है? और अगर तब भी प्रॉब्लम आए तो मुझे फिर जरूर बताइएगा, ठीक है? थोड़ा इसको फ्री रहने दें, स्पेस दे दें इसको थोड़ी देर के लिए, और फिर कल दिन में ट्राई कीजिएगा, ठीक है? और फिर मुझे बता दीजिएगा।
आई होप कि ये समझ आ गई होगी। टास्क ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप 5 मिनट में सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट ही करना है और उसको अपलोड कर देना है। डिस्क्रिप्शन आपके लिए ChatGPT लिख देगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कोई चैलेंज हो तो प्लीज मुझे बता दें, एक्सेप्ट क्लाउड लॉगिंग। जिन लोगों का क्लाउड लॉगिंग नहीं हो रहा, उसके अलावा अगर कोई चैलेंज है तो प्लीज। मुझे इसका कोड आ गया है तो उससे लॉगिन हो गया। चलो जबरदस्त हो गया फारूक भाई। तो बस फिर आप अपना टास्क कंप्लीट कर लो। मजबूत चैनल में सुपना, मैं आपको यही कहूंगी, आप कल दिन में ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे दोबारा बताइए, ठीक है? ये क्लास के बाद आधे घंटे के बाद ट्राई करके देखें और फिर मुझे इन्फॉर्म कर दे हुआ कि नहीं हुआ। Okay, Ji. Thank you so very much, everyone, for joining today. We'll see you tomorrow at the same time, 9 p.m. sharp. Till then, take good care of yourself and complete your task. Allah Hafiz.